Friend, good morning, everybody. At the outset, let me thanks Dr. Kamlakar Jadhav for inviting me for this webinar. Uh, Today, I will be speaking on AQAR preparation under revised accreditation framework of NAC. Now, although it is this presentation is mainly, designed for preparation. Getting the participant fully prepared for preparation of AQAR, which is Annual Quality Assurance Report. Although AQAR is going to have a very typical format, but I'm not going to directly switch to the format. Rather, to begin with, maybe today, because this is going to be outlined at my talk. Today, I will be focusing on because I want you to get ready for preparation of AQAR straightway, because format is going to be very structured format and it is not that much difficult. There are some complexity even in AQAR format as well that I'm going to discuss with you in detail. So maybe tomorrow I will be able to touch upon all those aspects of AQAR preparation. But today I'm going to tell you, because if you really want to prepare a very impactful AQAR of your institution, you need to understand the NAC process, entire NAC process. आपको जो है NAC process समझना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि because बहुत बार ऐसा होता है कि we are very we always go with a very specific direction to prepare AQAR. I mean, what I mean to say is, what we do usually, we usually collect the data from various departments of our institution. We prepare the consolidated data and we submit those data to NAC through NAC portal. But what I mean to say is, I would like to tell you what is the purpose of NAC, and therefore what I'm going to tell you to begin with, you can see the outline. I'm going to tell you what the revised accreditation framework is all about. I know most of you are either IQAC coordinator or principal, and maybe a senior professor in the respective institution. You must be well aware, but still it is my duty to revise, tell you rather, what are the silent features of the revised accreditation framework. Then what is the present status of RAF? Because I have collected results from first window itself till the very recent meeting, the standing committee meeting of NAC, which was recently held in the month of March, latest result. So I would like to tell you how the key trends in the results as well. Then what kind of mid-course corrections NAC has adopted, because we need to know all those things. And analysis of the quantitative metrics of colleges as well as universities. And next would be the challenges of revised accreditation framework, because we need to understand what are the challenges. Because unless we understand the challenges, we will not be able to address those. And what I mean to say is, it's not only preparation of data. मुझे ये लगता है कि हमें data prepare करना, NAC को submit करना, accordingly NAC का grade मिलना, this is a very routine process. But what I mean to say is, we need to ensure that the quality culture is being developed in the institution, and once it is developed, we need to ensure that it will be implemented throughout the 5 years. And then I will come to AQAR preparation. And therefore, today mostly I will be focusing on those first 5-6 points, and tomorrow I will be switching on AQAR preparation. Friend, before I start the salient feature, let me tell you मतलब क्यों मैं आपको बताना चाहता हूँ. आपको मैं because I have got couple of friends in NAC Bangalore. तो ऐसे ही on lighter mode मैंने एक बार उनको पूछा था कि यार कब तक हमें सताओगे. मतलब कितने बार आप every 5 years you will be asking us to prepare the data, and then and then we have to submit it, and you will be giving us grade and all. ये बड़ा routine, बड़ा bore यार ये system है. ये आप कब हमें छुटकारा कब मिलेगा. तो उन्होंने बड़ा लाइटर मोड में जवाब दिया था कि उन्होंने कहा था कि सर देखो प्रोफेसर सिरसाट, NAC का काम है आग लगाना. आग लगाने का काम NAC करेगी, एंड आपको खुद को जलते रहना है. मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं कि जलकर खाक होना है. जलते रहना है मतलब हमें जो है एक बार NAC ने आग लगाने के बाद हमें जो सिस्टम which we are going to adopt, because this whenever you are
evaluating yourself under NAC, you are going to, understand what is going to be the self-evaluation method, because this is kind of self-evaluation as well as external, like internal as well as external evaluation. So whenever you are preparing data, you will be evaluating yourself, like each faculty member, all the system, which include all the staff, systems, all the processes, like the institution as a whole. So we will be evaluating on our own, and that is why we will be preparing our data. So whenever we will be preparing our data, जब data हम prepare करेंगे, हम अपने आप को evaluate करेंगे, and then we will be submitting that data to NAC, and the NAC के जो external member जो है PhD member जिसको हम कहते हैं, they will be looking at our data, they will be evaluating our data. हमारे पास आएंगे, बताएंगे कि भाई what are the shortcomings, what are the pitfalls, और क्या probable suggestions वो मतलब corrections वो बताएंगे हमें, and then we will be, this is how the process is. So हमें एक self evaluate करना है, that is what we call it as the internal evaluation, and external evaluation होगा जो NAC PhD में आएगी, वो जब हमारा external evaluation होगा. तो ये जब हम करेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि where we are, where do we stand. जब हमें पता चलेगा कि हम कहां पर है, तब तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि if we are preparing, because I am also working in one of the like university department, तो खुद मैं IQAC डायरेक्टर रहा हूँ पिछले काफी दिनों से. I am in the process of NAC assessment because I have visited many universities and colleges as a NAC PhD member. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसीजर है, if you are doing it only for the sake of preparation of data, इसका मतलब अगर हम ऐसा करते हैं, it means that we are killing ourselves, we are killing our student. मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके बाहर देखना चाहिए, हमें इसके बाहर आना चाहिए. हमें data preparation, it will be like one kind of exercise we are going to do, but at the same time we need to be very honest. We need to be very honest, because while preparing data, जो processes हम adopt करेंगे, जो processes हम initiate करेंगे, we need to continue those processes. Rather हमने ये देखा कि ज्यादातर colleges या universities में हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमारा NAC आता है, तो हम like we are very structured, we are very disciplined, we are very committed, data तैयार करेंगे, सब कुछ करेंगे on paper, and once the NAC is over, हम वो बंद करके रख देंगे, 5 साल आराम करेंगे. Let me tell you, because I can share one wonderful example. I can quote one wonderful example. हम university का नाम मैं quote नहीं करना चाहूँगा. I was visiting one university in the state of Madhya Pradesh as a PhD member, and we were having interaction with PhD scholar. तो आपको पता होगा कि जब PhD स्कॉलर के साथ इंटरेक्शन होता है, तो यूजुअली NAC PhD मेंबर हम उन्हें कुछ सवाल करते हैं कि whether you are happy, what kind of fellowships, research scheme, promotion of scheme the university has implemented, and blah blah blah. So we were asking this question. All of a sudden one student came. He stood up and he said, "Sir, मुझे मेरा एक सजेशन है." और सजेशन क्या बताया उन्होंने वो स्टूडेंट ने कहा कि सर ये NAC जो 5 साल के बाद होता है ना, ये is it possible to have this NAC after every year? आप सोचिए, हर 1 साल के बाद में NAC पॉसिबल है क्या ये प्रोसेस? डू यू नो उसका मतलब क्या था? कि वो स्टूडेंट ने कहा, क्योंकि आगे चल के खुद उसने बताया कि सर देखिए, क्योंकि अभी हमारे पास NAC चल रहा है, तो सिंस लास्ट 6 मंथ हमारे पास तो दिवाली है, सब कुछ साफ सफाई हो रही है, सब कुछ सही हो रहा है, हमारे इश्यूज को देखा जा रहा है, इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं, एंड देन once the NAC is over, because एक NAC होने के बाद आप लोग चले जाएंगे, एंड अगेन फिर से हमें तो वही दिन आएंगे. यू सी, देखिए ये इंसिडेंस मैंने आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ NAC अगर हम डेटा बनाएंगे, हम अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे, तो इट इज क्राइम. मैं कहता हूँ कि ये मतलब क्राइम करने जैसा होगा. वी आर किलिंग अवर स्टूडेंट. So my earnest request to all of you is going to be, whenever you are preparing data prepare करते समय जो processes, जो systems हम adopt करते, I would request you to please continue those processes, please continue those systems throughout the year, so that all stakeholders, सबसे important stakeholder हमारा जो student होता है, वो बेचारा खुश हो जाएगा, and हमें भी खुशी मिलेगी, क्योंकि real satisfaction हमें होगा, क्योंकि as a teacher, because we all are teachers, सही satisfaction अगर हम अगर चाहते हैं, तो हमारे student जो है, they must be very happy. So to begin with, I thought let me share this story with you. So let me start now. The silent feature. You are all well aware, because this revised accreditation framework NAC has started from July 2017, and like this new method is very much ICT enabled, very objective, transparent, scalable, and robust.
क्योंकि क्यों, देखिए पहले क्या हुआ करता था, आपको पता होगा कि पहले ऐसा था कि NAAC PA टीम यूज्ड टू विजिट अवर यूनिवर्सिटी और अवर इंस्टीट्यूट, एंड अगर NAAC PA टीम अगर अच्छी है तो हमें वी यूज्ड टू गेट गुड ग्रेड, अगर NAAC PA टीम मेंबर अगर अच्छे नहीं है तो वी यूज्ड टू नॉट गेट गुड ग्रेड। मैं उल्टा मैं कहना नहीं चाहूंगा। तो इसका मतलब क्या था कि पहले सब कुछ वो पीटी मेंबर के हाथों में था, सब कुछ। एंड NAAC ने देन ओवर द इयर्स, बिकॉज NAAC इज रिवॉल्विंग, लेट मी टेल यू, ओवर द इयर्स, बिकॉज अभी भी आपने देखा होगा कि 2017 से लेकर अभी तक देयर हैज बीन मेनी मेनी अमेंडमेंट्स इन द NAAC गाइडलाइंस। आपने देखा होगा, मैं उसका भी जिक्र मैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम करूंगा। तो पहले क्या था, इतना आईसीटी इनेबल तो था ही नहीं, बिकॉज नाउ यू नो लाइक वंस यू प्रिपेयर अवर एसएसआर इज गोइंग टू गो टू थर्ड पार्टी and this evaluation is going to be completely computer based, ICT based। तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मोर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल इंटरवेंशन कोई काम ही नहीं करते। आपको खुद को क्या लगता है, मतलब पीयर टीम कुछ भी क्यों नहीं लगता, लेकिन मैं अगर डेटा आपका आपके इंस्टीट्यूट का असेस कर रहा हूँ तो मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। मुझे देखना है क्योंकि सवाल है एंड देन उसके जवाब क्या है। इट इज वेरी ऑब्जेक्टिव, ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, आपको सब कुछ पता चल सकता है कि आप कहां पर हो। स्केलेबल, इट इज वेरी डायनेमिक एंड इट इज वेरी स्ट्रांग एज वेल। एज आई मेंशन अर्लियर, दिस इज फर्स्ट टाइम आफ्टर 2017 थर्ड पार्टी वैलिडेशन। पहले क्या हुआ करता, जैसे मैंने बताया कि पीए टीम के हाथों में था। अभी क्या है कि हमारा जो डेटा है, वंस यू प्रिपेयर एसएसआर, इट इज गोइंग टू NAAC इज गोइंग टू सबमिट इट टू थर्ड पार्टी। ओके, थर्ड पार्टी जाएगा तो उनको पता भी नहीं रहेगा कि आप कौन है, आपका कॉलेज कौन सा है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। And then they will be like they will be very very unbiasedly they will be evaluating your data. Now this is what which is very very important. NAAC has introduced pre-qualifier, क्योंकि आपको पता होगा कि जो थर्ड पार्टी वैल्यूएशन है, जिसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं, क्वांटिटेटिव वैल्यूएशन है, उसमें अगर आपको 30% नहीं मिलता है तो यू आर नॉट, पीए टीम इज नॉट गोइंग टू विजिट। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज पीए टीम सॉरी प्री-क्वालिफायर, जो कि पहले नहीं था। एंड देन यहाँ पर रादर यहाँ पर मैंने दो कंपोनेंट बताए, जैसे कि सिस्टम जनरेटेड स्कोर व्हिच इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, 70%, अप्रोक्सीमेटली 70%। ये वेरी करता है एफिलिएटेड कॉलेजेस, autonomous colleges and universities को, but approximately 70% quantitative and 30% is peer judgment. Most importantly, NAAC has adopted 100% offsite evaluation of institution after 4th cycle onwards. Like if your institution is getting subsequently A and higher grade from last 3 cycles, then you are eligible for this particular kind of exemption. So maybe if you are, let us say, going through the 4th cycle of accreditation and पिछले 3 साल में 3 cycle में आपने A या A से ज्यादा grade लिया हो, then you NAAC may think because it all depends on NAAC. वो सोच सकते हैं कि आपके पास कोई टीम ना आए, ओनली थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन होगा और आपको ग्रेड अलॉट किया जाएगा। Most importantly, it has provided wonderful differences in the metrics and weightages as well as benchmarking. Of course, benchmarking NAAC ने अभी तक disclose नहीं की, लेकिन whenever they are evaluating, the benchmarking are not going to be the same for all the like universities, autonomous colleges and the affiliated colleges. तो आप अगर देखोगे तो अभी आप अगर गाइडलाइन देखोगे तो उसमें मैट्रिक्स वेटेजेस में भी कॉलेजेस, affiliated colleges, autonomous colleges and universities में there has been substantial changes. And most importantly, very important feature of the revised accreditation framework is there has been enhanced participation of students, alumni in the assessment process. देखिए आपको पता होगा कि स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे लगभग कॉलेजेस को 60% है, 6% है, 60 वेटेज है, ऑटोनोमस कॉलेज को 50 है, 50 मार्क्स है आउट ऑफ 1000 एंड यूनिवर्सिटीज को 30 मार्क्स है। तो आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा अपार्ट फ्रॉम whenever the team is going to visit, again team is going to have interaction with student, but टीम आने से पहले जब आपका डेटा इवैल्यूएट होगा, स्टूडेंट SSS हम कहते हैं उसको, तो स्टूडेंट का फीडबैक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं एक बात और इंपॉर्टेंट बता दूं, क्योंकि मैं कुछ सीक्रेट शेयर नहीं कर रहा हूं, मैं मतलब आप ये मत समझना कि मैं एज ए NAAC टीम मेंबर कुछ NAAC के सीक्रेट में शेयर कर रहा हूँ, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो अच्छे प्रैक्टिसेस है, जो कुछ ऐसे क्लू है जो आपको मैं बताऊं, तो सो दैट यू विल बी एबल टू प्रिपेयर योर इंस्टीट्यूशन इन बेटर वे। तो NAAC टीम जब हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट करती है तो ये जो स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे के जो आंसर जो होते हैं वो NAAC टीम के हाथों में थमा देते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट कुछ कंप्लेन करेंगे हमारे बारे में,
राइट। और कुछ कंप्लेंट्स जेन्युइन होंगे, कुछ कंप्लेंट इंटेंशनल होंगे, मतलब एवरी कंप्लेंट इज नॉट गोइंग टू बी जेन्युइन। आपको बताऊं तो हमने बहुत बार ऐसा देखा कि जब हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी विजिट करते हैं इन द कैपेसिटी ऑफ NAAC PA टीम मेंबर, जब हम NAAC हमारे हाथों में जो रिस्पांस स्टूडेंट के देते हैं, तो वहां जाकर पता चलता है कि स्टूडेंट ने जो कंप्लेन किए हैं दैट इज वन वे। मतलब कुछ कंप्लेन ऐसे होते हैं कि जो रियलिटी में बेटर होता है लेकिन स्टूडेंट जानबूझ के करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट ज्यादा प्रेस करते हैं एंड रियलिटी में उससे ज्यादा खराब होता है इंस्टीट्यूट में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे है उसके रिस्पॉन्सेज जो है, दो रिस्पॉन्सेज आर गोइंग टू बी हैंड ओवर to the NAAC PA team member whenever NAAC PA team is going to visit, and they are going to validate those responses. वो आपको सवाल नहीं करेंगे, वो खुद देखेंगे, वो उनके पास सवाल, उनके सवाल जवाब रहेंगे, and accordingly they will validate that, cross validate that. They will be asking you some of the questions related to those questions raised by the student. लेकिन ये नहीं बताएंगे आपको कि स्टूडेंट ने सवाल किए थे, स्टूडेंट ने कुछ कंप्लेन किए थे, but they are going to cross verify those important doubts. So these are the important salient features of NAAC. So there are 3 processes of NAAC entire assessment and accreditation जो आपको पता है, लेकिन क्विकली मैं आपको बताना चाहूंगा। लेवल 1 होगा कि आपको IIQA सबमिट करना है, पहले हम उसको लेटर ऑफ इंटेंट कहते थे, इसको अभी ऑनलाइन सबमिट करना है, आपको पता है। वंस यू सबमिट दैट, NAAC is going to verify. अभी तो NAAC इतना फास्ट हुआ है कि within 1 week you are if you are fortunate within maybe sometimes within couple of days भी आपको NAAC का कंफर्मेशन आ सकता है कि your IIQA has been accepted. So पहला लेवल होगा कि आपको IIQA ऑनलाइन सबमिट करना है, NAAC is going to evaluate that. NAAC is going to either accept or reject. अगर रिजेक्ट करता है तो आपको सेम फीस पे फिर से सबमिट करना होगा, उसका रीजन भी NAAC आपको बताएगी कि क्या रीजन है, आपको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया। बट आपको बताऊं कि ज्यादातर IIQA एक्सेप्ट ही होते हैं। If there are very serious issues, serious concern, then only NAAC is going to reject. And once it is accepted, फिर आपको समय मिलेगा। पहले 45 days हुआ करता था, अभी 30 days NAAC ने किया है। बट NAAC is going to आपको बताओ कि NAAC हर बार चेंज करती है। पहले ज्यादा समय था, आप कम कर दिया। We never know, tomorrow there would be another guideline from the NAAC and they are going to ask you, okay, submit it within maybe 20 days. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप IIQA सबमिट करेंगे तो आपके पास पूरा SSR रेडी होना चाहिए। In the not SSR doesn't mean that only the draft. SSR means along with all documents. और डॉक्यूमेंट में आपको मैं बताऊं कि अगर मान लो आपके पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन कल्चरल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, मान लो आपके इंस्टीट्यूट में 1000 स्टूडेंट है, आउट ऑफ 1000 900 स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन वन और अदर एक्टिविटीज, क्योंकि आपके पास 900 डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप ये सोचेंगे कि भाई 900 डॉक्यूमेंट है, सबके सब जरूरत होना नहीं है मुझे, तो मैं 10-12 रेडी करता हूँ। नो, you have to prepare all those 900 document and keep it on your website. आपके वेबसाइट पे आप रखोगे, और उसका मैं वो भी तरीका आपको मैं ड्यू को सब टाइम बताऊंगा कैसे करना है। तो उसका खाली लिंक आपको NAAC को देना है। And let me tell you, NAAC is not going to verify all that. NAAC is going to randomly check your document. लेकिन randomly आपका बैड लक अगर रहा, मान लो आपने 900 डॉक्यूमेंट एक्सपेक्टेड है, आपने 100 दिए और उन्होंने 101 डॉक्यूमेंट चेक किया, तो NAAC is going to उनको ऐसा लग सकता है कि आपने पूरा फेक डेटा दिया है, आप NAAC को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। एंड देयरफॉर if you are claiming 900 documents, then you need to have 900 documents ready. इसलिए मैं कहता हूं कि पहले लेवल, जब लेवल 1 होगा, जब आप IIQA सबमिट करेंगे, तो आपका SSR along with all documents रेडी होना जरूरी है। Nowadays, पहले आपको पता होगा कि 2 विंडोज थे। Now throughout the year NAAC has started accepting IIQA and SSR. Level 2 होगा कि once you submit your SSR, then the second process, NAAC will initiate DVV, data validation and verification. This is what we call as third party evaluation. So NAAC is going to say, NAAC is going to submit that data to third party. हमें पता नहीं रहेगा, लेकिन साथ साथ स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, DVV and SSS both are concurrent processes. आप SSR अपलोड करने के बाद एक 8 दिन के बाद में आपको ईमेल आएगा कि यूर SSR, आपके पोर्टल पे आपको पता चल जाएगा कि यूर SSS प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड। आपके स्टूडेंट जो है, आपके स्टूडेंट को ईमेल आना शुरू होंगे, उनके मोबाइल पे मैसेज आना शुरू होंगे, एंड दे हैव टू सबमिट देयर रिस्पॉन्सेस. So this DVV and SSR is going to be level 2, which is going to be concurrent process, and this is mainly quantitative assessment. And then जैसे मैंने बताया कि free qualifier, आप अगर level 2 में, आप थर्ड पार्टी वैल्यूएशन में अगर आपको 30% मिनिमम स्कोर अगर मिलता है, then only NAAC is going to arrange peer team visit. Otherwise आपके पास peer team visit होगी नहीं.
एंड देन यहाँ पर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ज्यादातर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज क्या करती है कि जब NACPA टीम आती है तो हम सबका सब डेटा उनको बताने की कोशिश करते हैं। रिमेंबर, आप अगर सबका सब डेटा अगर बताओगे, NACPA टीम मेंबर्स आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। वो 3 दिन, आज तो आजकल तो कॉलेज में 2 दिन रह गए, यूनिवर्सिटीज में 3 दिन है, वो सबके सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करेंगे। एंड मोरओवर आप देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि NACPA टीम आएंगी, आप डॉक्यूमेंट बताएंगे, दे विल बी वेरी हैप्पी। मान लो आप जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि आप सब के सब क्वांटिटेटिव के डॉक्यूमेंट्स आपने बता दिए, दे विल बी वेरी हैप्पी, वो कहेंगे हाँ बढ़िया, बहुत डॉक्यूमेंट अच्छे हैं आपके पास। बट जब वो इवैल्यूएट करने बैठेंगे तब वो देखेंगे कि अरे यार ये क्वालिटेटिव मैट्रिक्स में इन्होंने क्या किया। अगर मान लो आपने क्वालिटेटिव मैट्रिक्स को अगर फोकस नहीं किया होगा, एंड अगर आपका फोकस क्वांटिटेटिव, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे पास ज्यादा अच्छा है वही बताने की कोशिश करते हैं, जहां पर हम पिछड़ते हैं वहां वो उसको हम छुपाने की कोशिश करते हैं। डोंट डू दिस। अगर हम ऐसा करने की कोशिश में, अगर जो अच्छा है क्वांटिटेटिव में वही उसी को हम बार बार अगर बताने की कोशिश करेंगे तो NACPA टीम के मेंबर के चेहरे पे तो खुशी दिखाई देगी, लेकिन जब सीट आपके पास आएगी असेसमेंट सीट, वो अच्छी नहीं होगी। एंड देयरफॉर माय फ्रेंड, let me tell you, whenever NACPA team is going to visit to your college or institute, they are going to evaluate only qualitative matrix only, and therefore the SOC analysis is going to be very, very important. And this is, I mean, you have to be very careful about that. And once it is done, the NAC is going to collect all the data from all the sources and declare the date. So this is the overall process. I have already mentioned, so I'm not going to waste time now here. So this is diagrammatic representation of what I have mentioned earlier. Okay, this is grading and accreditation. Now, as far as the distribution, this is very important. You need to understand this. As far as the distribution is concerned, you can see here. Yeah, आप देखिए यहाँ पर पहले जैसे मैंने बताया ना, this is like पहले ऐसा नहीं था। पहला जो 2017 के पहले जो हमारे पास असेसमेंट तरीका था, ये ऐसा नहीं था। आप देखिए अभी यूनिवर्सिटीज को टोटल क्राइटेरिया तो साथ ही है, की इंडिकेटर देखिए, की इंडिकेटर देयर इज नो मच डिफरेंस इन की इंडिकेटर्स। आप देखिए 34 ऑटोनोमस कॉलेज एंड एफिलिएटेड कॉलेज यूजी पीजी को 31 एंड 32 है। बट इफ यू लुक एट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स, यू कैन सी हियर द क्वालिटेटिव मैट्रिक्स, यूनिवर्सिटी 36, ऑटोनोमस कॉलेज 35, affiliated 35 and 36. Here also not much difference, but quantitative there is huge difference. You can see 79 total 79 quantitative metrics for universities, 72 for autonomous colleges, and 58 for affiliated UG college, 58, and PG is 60. You can see the total number of metrics: 115 for universities, 107 for autonomous colleges, and 90 थी, only 93. You can see the substantial reduction. जब 2017 में शुरुआत हुआ था तब ये मैट्रिक्स की संख्या बहुत ज्यादा थी. NAC has evolved, as I mentioned earlier, NAC has evolved like anything. अभी काफी चेंजेस हुए, इसलिए रिजल्ट का ट्रेंड देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ मेरे भाइयों, क्योंकि उसका रीजन ऐसा है कि आज का पहले जो AQR था वो अलग था और आज का AQR ये अलग है. पहले ऐसा हुआ करता था कि we used to be very casual. पहले मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो है बड़े कैजुअल रहा करते थे AQR सबमिशन में. अब अगर AQR, क्योंकि हमने खुद देखे कॉलेजेस की, जब हम PA टीम विजिट करते कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में, तो उनके AQR एंड SSR में काफी तफावतें होती है. I mean, क्योंकि रीजन ये होता है कि AQR देते समय हम उतना सीरियस नहीं हुआ करते थे, जब ये NAC का SSR लिखते थे देन हम मतलब नींद से जागते थे. एंड देन AQR में कुछ अलग ही था, SSR में कुछ अलग ही हुआ करता था. लेकिन आज मैं आपको बताऊं ये कि AQR आपने फॉर्मेट देखा होगा और आपने देखा होगा कि SSR और AQR का फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम. तो इसका मतलब ये है कि जिस स्टिपुलेटेड ईयर का आप AQR सबमिट कर रहे हो, उस AQR के साथ में जो भी आप क्लेम कर रहे हो वही क्लेम आपको आगे चलकर NAC असेसमेंट करते समय आपको दूसरे क्लेम आप नहीं कर पाओगे. आप अगर करोगे तो यू विल बी कॉट, आपको पता चल जाएगा, मतलब आपको पकड़ा जाएगा. आप लोग मतलब NAC कहेगा कि यार तुमने कुछ तो गलती की, धोखाधड़ी कर रहे हो. क्योंकि आप देखिए, इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आपको बड़ा सीरियस होना है. एंड ये क्राइटेरिया मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये भी आपको पता है, लेकिन जैसा मैं आपको ओवरलुक करना चाहता हूँ. देखिए क्राइटेरिया 1 आप देखोगे तो यूनिवर्सिटीज के लिए 150 मार्क्स है, ऑटोनोमस कॉलेज और यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट सेम है. उसका रीजन ऐसा है कि करिकुलम डिजाइन एंड डेवलपमेंट इट इज सपोज टू बी अ रोल ऑफ यूनिवर्सिटी,
एंड इसीलिए इस क्राइटेरिया में यूनिवर्सिटीज एंड ऑटोनोमस कॉलेज को ज्यादा वेटेज दिया गया। आप अगर यूजीपीजी कॉलेज को देखोगे तो 100 ओके। तो क्योंकि रीजन ऐसा है कि डिजाइनिंग का काम मेनली यूनिवर्सिटी का है, आपको प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन हैज टू बी डन बाय बोथ। इट्स नॉट, ऑल्दो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिखा है, इसका डजंट मीन दैट वी डोंट नीड टू डू द प्लानिंग। ओके, इतना ध्यान रखिए। यहाँ कुछ मार्क्स होने ही चाहिए थे, बट एनीवे मार्क्स एडजस्ट करने के लिए नैक ने यहाँ पर मार्क्स नहीं रखे। बट इसका मतलब ये नहीं समझना कि यूनिवर्सिटी के लोगों को, ऑटोनोमस कॉलेज को प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। इट इज द इंटीग्रल पार्ट, ये करना ही है। लेकिन आप देखिए कि करिकुलर एस्पेक्ट में कॉलेजेस, आई मीन यूनिवर्सिटीज एंड ऑटोनोमस को ज्यादा वेटेज दिया गया। अब अगर क्राइटेरिया 2 देखोगे, टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, इसमें आप एफिलिएटेड कॉलेजेस को सबसे ज्यादा वेटेज है। आप देखिए 350, यूजी एंड पीजी को 350, एंड रादर यूनिवर्सिटी को सबसे कम है 200। Does it mean that teaching learning process is not important in university? No, it is equally important. लेकिन आगे का जो क्राइटेरिया है रिसर्च इवैल्यूएशन एंड एक्सटेंशन, वहां पर रिसर्च प्रमोशन एंड एक्सटेंशन, वहां पर जो है यूनिवर्सिटी को ज्यादा वेटेज एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्सिटी के लोगों ने ज्यादा काम करना एक्सपेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर कम वेटेज दिया गया। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि जो कॉलेजेस के लोग हैं उनके लिए सोने की चिड़िया है क्राइटेरिया 2 में, सोने की चिड़िया। आपको अगर अच्छा ग्रेड चाहते हो तो यू नीड टू फोकस ऑन क्राइटेरिया 2। अगर इफ यू कैन एंश्योर गुड ग्रेड इन क्राइटेरिया 2, मोस्ट लाइकली यू आर गोइंग टू एंड अप विद गुड ग्रेड। इसलिए यहाँ पर फोकस करिए। एंड आप अगर उसके इंडिकेटर्स, की इंडिकेटर्स अगर देखोगे तो यहाँ पर ज्यादातर रीचेबल की इंडिकेटर्स है, आप सब कुछ कर सकते हैं। हम जब आगे बढ़ेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा इसके डिटेल, आगे मैं बताऊंगा कि ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि दोज हु आर फ्रॉम ऑटोनोमस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, उनके लिए ऐसा नहीं कि उनको ध्यान नहीं देना है, उनको ध्यान तो देना ही देना है, बट दे हैव टू फोकस मोर ऑन दिस क्राइटेरिया 3। देखिए क्राइटेरिया 3 क्या है, रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन। यहाँ पर देखिए कि यूजी कॉलेज को सबसे कम है, क्योंकि हमें पता है कि यूजी कॉलेजेस में बहुत बार रिमोट एरिया पे भी कॉलेजेस हो सकते हैं, इवन मेट्रोपॉलिटन में भी हुआ तो भी वहां के R&D फैसिलिटीज उनके पास अच्छे नहीं होंगे। दैट इज व्हाई आप देखिए कंसल्टेंसी वी आर नॉट एक्सपेक्ट, नैक इज नॉट एक्सपेक्टिंग, रादर आई एम नॉट हैप्पी, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि कंसल्टेंसी होनी चाहिए। इवन मैंने देखे कि देहात में, मतलब रूरल एरिया में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं कि दे आर अर्निंग कंसल्टेंसी लाइक एनीथिंग। तो एनकरेज करने के लिए कंसल्टेंसी के लिए 2 मार्क्स क्यों नहीं होते, 5 क्यों नहीं होने चाहिए थे, बट एनीवे इट इज नॉट देयर। बट इट डजंट मीन दैट you should stop consultancy. No, if you are doing consultancy you should keep on doing that. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन में कॉलेजेस के लिए बहुत ज्यादा ट्रबलसम नहीं रहा। अभी पहले काफी ट्रबलसम हुआ करता था, जैसे कि प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड फैसिलिटीज, या प्रमोशन ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज का मतलब ये होता है कि आपके इंस्टीट्यूट ने रिसर्च प्रमोशन के लिए क्या फैसिलिटी जनरेट किए। कॉलेजेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए नैक ने सोचा कि ठीक है, लेटर ऑन ये करेक्शंस बाद में आए, पहले नहीं थे, पहले तो सभी ऑलमोस्ट एक जैसे ही था, लेटर ऑन ये करेक्शन हुए, तो ये अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। इनोवेशन इकोसिस्टम देखिए, इनोवेशन इकोसिस्टम यूजी कॉलेज को बिल्कुल ही नहीं है। इनोवेशन इकोसिस्टम क्या है मैं आपको बताऊंगा, कितना चैलेंजिंग है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन यूनिवर्सिटीज के लिए सोने की चिड़िया होगी, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 250 मार्क है। नाउ एज पर एज क्राइटेरिया 4 इज कंसर्न, इट इज सेम, बिकॉज द रीजन इज सेम मार्क्स है, सेम वेटेजेस है। रीजन है कि जो लर्निंग रिसोर्सेज, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो इम्प्लीमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग रिसोर्सेज जो है, जो सबके तरफ होने चाहिए, ऐसे नैक को लगता है, इसलिए they have kept the same weightages for all the 3 sectors, I mean college, affiliated colleges, autonomous as well as universities. Student support and progression में थोड़ा डिफरेंस है। आप अगर देखोगे कि 100 है यूनिवर्सिटीज एंड ऑटोनोमस कॉलेज में, यूजी कॉलेज को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया। इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये सब उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर ज्यादा मार्क है इसका मतलब उनको ज्यादा वेटेज है और हमें कुछ कम करना है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आप देखिए कि स्टूडेंट सपोर्ट, प्रोग्रेशन, ट्रूली स्पीकिंग, अगर प्रोग्रेशन अगर सही मायनों में देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट का प्रोग्रेशन अच्छा होता है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का प्लेसमेंट अच्छा होता है, पर स्टिल उनको मार्क्स 100 ही दिए गए, बट यूजी कॉलेज में 140 दिए गए, क्योंकि ये इंटरनल कुछ मार्क्स एडजस्ट करने के लिए किया गया। तो स्टूडेंट सपोर्ट भी अगर आप मुझे पूछेंगे तो आई विल से लाइक इट इज इक्वल वेटेज, ऑल्दो इट इज गिवन डिफरेंटली। एंड 6 और 7 फिर से गवर्नेंस, लीडरशिप, मैनेजमेंट, ये तो सब तरफ एक जैसा होना चाहिए, वेदर यू आर ऑटोनोमस कॉलेज, यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेज, यूजी, पीजी,
एंड सिमिलरली इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सब तरफ सेम होने चाहिए, इसलिए आप देखोगे कि मार्क्स वेटेजेस भी सेम दिए गए। लेट अस मूव फर्दर। इंस्टीट्यूशनल ग्रेड एंड एक्रेडिटेशन स्टेटस, ये भी आपको पता है, जस्ट मैं आपको बता इसलिए रहा हूं कि पहले आपको पता होगा कि ए प्लस जो ग्रेड था 3.50 ऑनवर्ड्स, 51 ऑनवर्ड्स ए प्लस हुआ करता था, बट नाउ दे हैव चेंज, अभी 3.26 ऑनवर्ड्स जो है 3.26 टू 3.50 ए प्लस अभी कंसिडर किया गया, पहले जो 3.51 ऑनवर्ड्स हुआ करता। दिस आर द चेंजेस, नॉट रिसेंट चेंजेस, ये 1-2 साल पहले किए गए। And then grade qualifier, apart from free qualifier there is grade qualifier also। ये बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं होता। ग्रेड क्वालिफायर ऐसा है कि आप जितने भी 7 क्राइटेरिया हमारे हैं, इन एवरी क्राइटेरिया यू नीड टू गेट एटलीस्ट 1.51 मिनिमम, ये 1.51 आपको चाहिए। अगर मान लो आपका क्वालिटेटिव असेसमेंट के बाद में जब नैक के पास डेटा जाएगा, नैक इज गोइंग टू चेक इट एंड मतलब आपका सब कुछ हो गया, क्वालिटेटिव हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया, नैक ग्रेड अलॉकेट करने की कोशिश करेगा, तब वो देखेगा कि अगर मान लो आपको दोनों मिलाकर किसी एक क्राइटेरिया में 1.51 से कम है, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव मिलाकर 1.51 से कम है, तो यू आर नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज एक्रेडिटेटेड इंस्टीट्यूट, आपका एक्रेडिटेशन नहीं होगा। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि 1.51 होना ही चाहिए, इसलिए सभी क्राइटेरिया को आपको एक जैसा वेटेज देना जरूरी है। आगे ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिड कोर्स करेक्शन नैक ने क्या क्या किए अभी तक। रिव्यू ऑफ बेंचमार्किंग, आपको बताऊं कि बेंचमार्किंग हमें पता है कि नैक ने अभी तक बेंचमार्किंग डिस्क्लोज नहीं किया। उसका रीजन ऐसा है क्योंकि क्योंकि हमारे पास इंस्टीट्यूशन के अलग अलग लेवल्स है, अलग अलग स्तर है। यूनिवर्सिटीज, जैसे कि यूनिवर्सिटीज भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, you cannot compare universities which is situated in metropolitan with that of university situated in rural area. Same thing is true with affiliated colleges as well, same thing is true with autonomous colleges as well, and institution के type भी अलग अलग है, इसलिए benchmarking करना नैक के लिए थोड़ा मतलब रिस्की होगा, इसलिए उनके पास तो बेंचमार्किंग है बट दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग दैट बेंचमार्किंग, बट दे आर रिव्यूइंग दैट, क्योंकि ये करेक्शंस जो आपको बता रहा हूँ कि जो क्राइटेरिया में, गाइडलाइंस में जो आप अगर 2017 से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो कम से कम 10-12 बार गाइडलाइन चेंज हुए होंगे, मिनिमम 10 to 15 टाइम। ओके, तो एवरी टाइम ये बेंचमार्किंग रिव्यू करते समय ही ये सब हुआ किया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्शनल मैट्रिक्स, पहले देखिए यूनिफॉर्मली सभी तरफ 5% ऑप्शनल हुआ करता था, आउट ऑफ 1000 आप 50 मार्क्स आप ऑप्शनल थे, लेकिन अभी यूनिवर्सिटीज को है ही नहीं, there is no optional matrix for universities and for affiliated colleges and autonomous colleges को है, लेकिन उसका परसेंटेज घटाया गया। शिफ्ट फ्रॉम विंडो सिस्टम टू ईयर राउंड, पहले शुरुआत में विंडो सिस्टम था, अभी ईयर राउंड ओपन है। ग्रेड क्वालिफायर रिव्यू, एवरी टाइम दे आर रिव्यूइंग द ग्रेड क्वालिफायर स्टेजेस एज वेल। इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा टेम्पलेट्स, आपको बताऊं कि पहले जब शुरुआत की थी नैक ने 2017 में, जिन लोगों ने पहले शुरुआत में अपने इंस्टीट्यूट को एक्रेडिटेट किया 2017 में, दे स्ट्रगल लाइक एनीथिंग, मुझे पता है, बिकॉज आई वाज इन क्लोज एसोसिएशन विद कपल ऑफ यूनिवर्सिटीज, दोस वी वर सबमिटिंग द डेटा, दे यूज्ड टू स्ट्रगल लाइक एनीथिंग, तब डेटा टेम्पलेट नहीं था। बाद में नैक ने, बिकॉज मैंने बताया कि नैक इज इवॉल्विंग, नैक इज कंटिन्यूअसली टेकिंग फीडबैक ऑन दिस RAF एंड अकॉर्डिंगली दे आर मेकिंग चेंजेस, दे आर मेकिंग इट यूजर फ्रेंडली, इसलिए तो उन्होंने स्केलेबल बताया ना, क्योंकि जब चाहे उसका स्केल चेंज कर सकते। तो अभी जो है डेटा टेम्पलेट देना शुरू किया, SOP भी आया, पहले ये नहीं था, क्योंकि SOP पहले आपको पता होगा कि मतलब यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस यूज्ड टू स्ट्रगल कि यार डेटा क्या दे, मतलब क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होनी चाहिए। नाउ थिंग्स आर वेरी इजी, आप SOP देखोगे आपको पता चलेगा कि XYZ क्लेम के लिए क्या आपको सपोर्टिंग डेटा देना है। एंड देन नॉन एप्लीकेबल मैट्रिक्स, जैसे मैंने बताया पहले 5% था, अभी इट इज ओनली 3%, and it's not open, it's not for universities now, it is not applicable at all for university, it is applicable only for affiliated colleges and autonomous colleges only, and that is only 30 weightage, 30 मार्क्स तक आप कर सकते हैं। एंड मोरोवर ये तो पहले से रूल है कि मैक्सिमम अगर एक क्राइटेरिया से आप 10 से ज्यादा वेटेज नहीं ले सकते आप किसी भी एक क्राइटेरिया से, एंड 1 to 7 आर एसेंशियल क्राइटेरिया, आप किसी भी मतलब क्राइटेरिया 1 to 7 से कोई भी
मैट्रिक्स आप ड्रॉप नहीं कर सकते। एंड दूसरा ऐसा है कि ऑप्शनल मैट्रिक जो है वो भी उन्होंने बताया कि कुछ भी आप नहीं कर सकते, उसकी लिस्ट है, वो लिस्ट के अनुसार आपको करना पड़ेगा। एंड क्वालिटेटिव मैट्रिक्स कैन नॉट बी ऑप्टेड आउट। क्वालिटेटिव इसीलिए नहीं क्योंकि क्वालिटेटिव में आपको बताना होगा कि आप उसमें क्या कर रहे हो, सो क्वालिटेटिव मैट्रिक्स कैन नॉट बी ऑप्टेड आउट। ये है लिस्ट, दिस इज द लिस्ट ऑफ the matrix, you know, for affiliated colleges which can be opted out, and this is the list of matrix for autonomous colleges which can be opted out। आपने देखा होगा कि ये क्राइटेरिया 3 4 5 6, यहाँ पर भी 3 4 5 6, लेकिन आप अगर देखोगे तो अलग अलग मैट्रिक्स है। एफिलिएटेड कॉलेजेस को एसक्यू जो है कुछ और मैट्रिक्स में है, ऑटोनॉमस को कुछ और मैट्रिक्स में, सेम नहीं है। चैलेंजेस क्या है मैं आपको बताऊं, आरएफ के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन देखिए उसे डरना नहीं है। आपको मैं बताऊं कि सही अगर देखा जाए तो आरएफ न्यू आई मीन रिवाइज एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क इज वेरी इजी ऑल्दो दे आर चैलेंजिंग बट इट इज वेरी इजी। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर सीरियस है, ऑनेस्ट है, कमिटेड है, जेन्युइन आपकी केस है, तो यू आर गोइंग टू एंड अप विद गुड ग्रेड। लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंड विद गुड ग्रेड। तो चैलेंजेस क्या है देखिए, सोर्स एविडेंस लिमिटेड टू डेटा प्रोवाइडेड बाय एचईआई। अब देखिए प्रॉब्लम ऐसा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि नैक, बिकॉज नैक इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। नैक जो है आपको पता होगा कि नैक ने बहुत सारे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज कुछ पैसा भी देती है, नैक के एक्सपर्ट भी आते हैं। हम जैसे लोग जो नैक पे टीम के मेंबर है, नैक भी हमें कहते हैं कि भाई यू शुड गो टू द पीपल, टेल देम लाइक हाउ दिस प्रोसेस इज इजी, और उसमें जो भी हर्डल्स है वो बताए। लेकिन बहुत बार ऐसे कॉलेज को पता नहीं रहता, लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि एविडेंस जो है ना, जो क्लेम हम कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे पास अगर 100 क्लेम है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार 100 डेटा मैं कैसे अपलोड करूं, क्योंकि अपलोड करने का तो लिमिट दिया है 2 MB 5 MB 10 MB, तो उसके आगे तो जा नहीं सकता। लेकिन लोगों को तरीका पता नहीं है। देखो कैसा है ना, डेटा वहां पर अपलोड करने का डेटा मतलब स्पेस लिमिटेड है, बट लेकिन आपके वेबसाइट पे आप अनलिमिटेड डेटा लोड कर सकते हो और उसका लिंक आपको देना है। अब आजकल बहुत सारे लोगों को पता चल गया, शुरुआत में पीपल यूज्ड टू स्ट्रगल लाइक एनीथिंग, तो इसके वजह से भी क्या हो ना, देयर आर मेनी पीपल स्ट्रगलिंग। देन इनसफिशिएंट डोमेन एक्सपर्टीज, लैक ऑफ ट्रेन मैन पावर एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस। देखिए क्या हो रहा है ना कि आप देखिए कि ऑल्दो देयर आर मेनी पीपल नाउअडेज, मतलब अभी पहले और आज के मतलब 2017 और अभी 2020 अगर मैं देखूं तो देयर हैज बीन सब्सटेंशियल चेंजेस, मतलब काफी इंप्रूवमेंट हुआ लोगों में, काफी लोगों को पता भी चल गया। लेकिन स्टिल क्योंकि चेंजेस होते रहते, फ्रीक्वेंट चेंज इसीलिए भी करना है क्योंकि जरूरत है, इसीलिए नैक भी चेंज कर रही है अपने गाइडलाइंस में, लेकिन अकॉर्डिंगली लोगों को पता नहीं चलता, इसीलिए भी लोग परेशान हैं। इकोसिस्टम इन हायर एजुकेशन, अनप्रिपेयर्डनेस फॉर आईसीटी ड्रिवन अप्रोच। अभी भी आपको पता होगा कि आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट में, वेदर यू आर फ्रॉम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस, देयर आर ओनली लिमिटेड पीपल दोज आर वेल फैमिलियर विद आईसीटी। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता, वो उनको लेना देना भी नहीं होता। वो बेचारे 4-5 लोग आईक्यूसी में जो काम करते, वो और उनके मित्र परिवार में जो 8-10 लोग होंगे, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, क्या नहीं करेंगे। वो इकोसिस्टम हम डेवलप नहीं कर पाए। ट्रूली स्पीकिंग, अगर एक बार सिस्टम हमने डेवलप की, अगर एक बार जैसे कि मान लो 2020 में अगर मैं नैक एक्रेडिटेशन कर रहा हूं, उसके बाद में तो मेरा ईच एंड एवरी मेंबर फ्रॉम माय इंस्टीट्यूशन शुड बी वेल अक्वेंटेड, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम वो इकोसिस्टम हम अभी तक भी, इवन टुडे आल्सो इज नॉट ओनली एफिलिएटेड कॉलेजेस, इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज वी आर स्ट्रगलिंग। उसका रीजन है कि वी आर नॉट ऑनेस्ट। आपको बताऊं, अगर हम ऑनेस्टली अगर ये इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये करना मुश्किल नहीं है। दैट इज व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग। टाइम ओवररन ड्यू टू डिलेज ऑन द पार्ट ऑफ एचईआई। क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि एचईआई के पास फॉर वन और अदर रीजन डिले होता है। डिले ऐसा होता है कि भाई अगर मान लो नैक से कुछ क्वेरी आता है, तो नैक ने बताया कि 15 दिन है, तो हम 8-10 दिन तो कुछ करेंगे ही नहीं, इसको पूछेंगे उसको पूछेंगे, उसमें समय बर्बाद करेंगे। एंड देन समय आएगा, फिर कहेंगे कि अरे यार मेरे पास तो समय कम है, या तो फिर यू आर गोइंग टू कॉल नैक पीपल कि भाई कुछ समय आगे बढ़ाकर मिल सकता है क्या, या तो फिर आप हड़बड़ाहट में कुछ गलत डेटा सबमिट करेंगे। आई हैव सीन दिस एग्जांपल्स मेनी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, मतलब महाराष्ट्र की कुछ यूनिवर्सिटीज भी है कि जो दे स्ट्रगल लाइक एनीथिंग फॉर सबमिशन ऑफ देयर एसएसआर इन टाइम। तो ये नहीं होना चाहिए। उसका रीजन अगेन है अवर अनप्रिपेयर्डनेस। ओके, देन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इश्यूज, आईसीटी, जैसे मैंने बताया कि हम प्रिपेयर्ड नहीं है आईसीटी को।
हर्डल्स एंड चैलेंजेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के जो यूनिका टीम है, we have developed wonderful software for collection of data. Let me tell you that software is very unique. In 2018 में जब हमारा थर्ड साइकिल ऑफ एक्रेडिटेशन हम किए थे, तब हमने डेटा कलेक्शन, कोलेशन एंड इंटरप्रिटेशन में वो सॉफ्टवेयर का बड़ा महत्व रहा. एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द कॉलेजेस टू डेवलप योर ओन सॉफ्टवेयर. कुछ एजेंसीज हैं, आपको बताऊं, प्लीज डोंट ट्रस्ट ऑन दोज एजेंसीज. कुछ एजेंसीज आपको फोन करेंगे, बताएंगे कि यार हमारे पास सब कुछ है, आप पहले आपका डेटा दो, हम आपको बताएंगे कि आपको कितना ग्रेड मिल सकता है, आपको क्या करना है, आपको नैक को कैसे डिफेंड करना है. प्लीज डोंट डू दिस. रादर मैं ये कहूंगा कि आपके इर्द गिर्द कोई अगर नैक एक्सपीरियंस, नैक पीटी में जाने वाला कोई मेंबर होगा, यू प्लीज बी इन टच विद हिम. उनका गाइडेंस आप लीजिए. मतलब किसी ऐसे मतलब जो चीटिंग करने वाले जो एजेंसीज है, जो पैसा ज्यादा पैसा निकाल दिए, प्लीज डोंट उनके पीछे मत जाइए आप. टाइमलाइन, मोस्ट ऑफ द टाइमलाइन नॉट मैचिंग विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्रेमवर्क एंड फील्ड रियलिटीज. ये भी थोड़ा इश्यू है. नैक इज, मैंने जैसे बताया कि तो जो नैक का जो टाइमलाइन है थोड़ा सा कैसे है ना, जैसे मैंने फिर से बताता हूँ कि औरंगाबाद का कॉलेज एंड घनसावंगी का कॉलेज, घनसावंगी में अपने कुछ इश्यूज रहेंगे, औरंगाबाद कॉलेज के पास उतने इश्यूज नहीं रहेंगे. तो फील्ड वर्क के प्रॉब्लम्स है. सेम टाइमलाइन सभी के लिए एक जैसा होना थोड़ा मुश्किल है, बट उसमें ऑप्शन भी नहीं है. ये भी एक वन ऑफ द इश्यू है. बट नैक इज अगेन लाइक इवॉल्विंग लाइक एनीथिंग. दूसरे चैलेंजेस है रेजिस्टेंस फॉर चेंज फ्रॉम स्टेक होल्डर्स. हमारे स्टेक होल्डर का प्रॉब्लम ये है कि हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट, ये जो आईसीटी बेस्ड, आईसीटी ड्रिवन जो मॉडल आया है, उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते. टीचर्स सबसे ज्यादा, क्योंकि डेटा कलेक्शन में टीचर का योगदान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. सो वी डोंट वांट टू चेंज अवरसेल्फ. दैट इज आल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस. नीड फॉर कंसीडरिंग फीडबैक फ्रॉम फील्ड फॉर द फाइन ट्यूनिंग द फ्रेमवर्क. ये हो रहा है. नैक मैं आपको बताऊं कि जैसे कि पिछले जून में, मुझे पता है लास्ट ईयर जून, NAC has invited all the colleges and universities, those who have secured A and above grade in the month of June. And I myself, along with one of my colleagues, we went there. उन्होंने हमको सुना कि भाई बताओ आपके क्या प्रॉब्लम्स है. जितने भी there were 30 to 40 people they invited, और हमसे पूरा सुन लिया उन्होंने कि भाई NAC असेसमेंट करते समय क्या मुसीबतें आई, कौन से क्राइटेरिया, जैसे की इंडिकेटर्स इन पर्टिकुलर कि जो तकलीफदायक है. जैसे कि आपको बताऊं, अभी पेरेंट का फीडबैक जो हमने, वो मीटिंग का आउटपुट है, जो हम उस मीटिंग में गए थे, हमने बताया था कि देयर वर मेनी अदर सजेशंस. वन ऑफ द सजेशन वाज कि जो फीडबैक लेते समय जो रूरल कॉलेजेस है, फॉरगेट अबाउट रूरल कॉलेज, इवन मेट्रोपॉलिटन में भी पेरेंट्स को कहाँ पता है सिलेबस क्या है. पेरेंट्स, we parents are very serious whenever kids are in lower KG. केजी में जब हमारे किड्स जब केजी में जाते हैं, तब हम बड़े सीरियस होते हैं कि उसका सिलेबस क्या है, टीचर क्या है, कैसे पढ़ा रही है, वगैरह वगैरह. लेकिन जब हमारे जो स्टूडेंट, हमारे जो पाल्य हैं, जो वो पीजी में जाते हैं, तब हम वी आर लीस्ट बॉदर्ड. हम बिल्कुल ही देखते नहीं कि वो टीचर क्या है, क्या पढ़ा रहा है, करिकुलम क्या है, टीचिंग पेडागोगी क्या है. वी आर लीस्ट बॉदर्ड. तो इसीलिए हमने बताया था कि भाई ये रियलिटी में फीडबैक लेना कोई मतलब ही नहीं है, वो नहीं रहा. सब मतलब फेक डेटा लोग क्रिएट कर रहे हैं. तो इट इज बेटर टू रिमूव, एंड NAC हैज रिमूव दैट. सुटेबिलिटी ऑफ फ्रेमवर्क फॉर स्पेशलाइज्ड HES, ये भी अभी हुआ है. यूजी के लिए अलग अलग गाइडलाइंस है. गाइडलाइंस मतलब कुछ क्लास है जो यूजी के लिए लागू नहीं होते, पीजी के लिए लागू होते. दे आर चेंजिंग. फिर रिएक्शंस ऑन टफ रिजल्ट्स विद डाउनग्रेडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आजकल आपने देखा होगा कि जितने भी इंस्टीट्यूट है जो मतलब जो पुराने तरीके से जिन्होंने अपना NAC एक्रेडिटेशन किया होगा, अभी अगर रिवाइज एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क में वो जाएगा तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट डाउनग्रेड. लेट मी टेल यू, मोस्ट लाइकली. लेकिन आपको बताओ, डरने की बात नहीं. अगर आप सीरियस हो, आप अगर सीरियसली अगर डेटा प्रिपेयर करेंगे, तो आपका ग्रेड नीचे नहीं जाएगा, रादर यू विल बी क्लाइंबिंग. हमारी यूनिवर्सिटी का पहले पुराना ग्रेड था सेकंड साइकिल में 3.07. इन थर्ड साइकिल विद रिवाइज एक्रेडिटेशन वी कुड एलिवेट अवरसेल्फ टू 3.22. तो आप अगर सीरियस रहोगे, जेन्युइनली डेटा सबमिट करोगे, तो यू आर गोइंग टू बी एलिवेटेड. Concern litigation due to linking of CGPA with the grants and recognition status. Yes, because nowadays क्योंकि आपको पता होगा रूसा थोड़ा सा भी स्लो हुआ है, बट शुरुआत में पिछले साल रूसा जिनके पास B ग्रेड है, A ग्रेड है,
मतलब जैसे कि आपको पता होगा कि जिस यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड होगा उन्हीं को रिसर्च एंड इनोवेशन का पैसा रुसा ने दिया पिछले साल, A plus, sorry, not A plus. So in Maharashtra there was only one university, Pune University, who got funding under RUSA for research and innovation. तो इसलिए लोग बड़े serious हो गए कि अभी क्योंकि funding के साथ है इसलिए. So this is also good. But this is one of the challenges. What I mean to say, matching of RAF outcomes with public perception of prominent HEIs. This is very very important. बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ colleges और universities ऐसे हैं कि they deserve more but they are end up with less grade. कुछ colleges ऐसे हैं कि they deserve less, they are end up with more grade. तो ये भी एक वन ऑफ द चैलेंज है. इसलिए यहाँ पर क्योंकि अभी ये अनोमलीज रिलेटिवली कम हुई है पहले फ्रेमवर्क में, क्योंकि पीएटीएम के हाथ में होता था तो गलतियां होती थी, लेकिन आजकल खाली पीएटीएम के हाथ में मैक्सिमम 30% है एंड ज्यादातर थर्ड पार्टी असेसमेंट है. इसलिए ये जो अनोमली है, ये जो डिस्पैरिटी काफी हद तक अभी कम हुई है. Now, I'm going to tell you the challenges, criteria-based challenges now. Please give me a second. ये challenges इसलिए important है क्योंकि आप अगर आपका AQR अगर बना रहे हो, क्योंकि डेटा आपको पहले तो डेटा तैयार करना पड़ेगा. डेटा तैयार करने के लिए each and every criteria you need to understand what are the challenges. Criteria 1, curricular aspect. क्या चैलेंजेस है देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ ऐसे की इंडिकेटर्स हैं कि जो यूनिवर्सिटी को लागू पड़ते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो ओनली ऑटोनोमस कॉलेजेस को होते हैं, यूजीपीजी को नहीं होते. बट दिस इज जनरल, आई एम टेलिंग यू, ओके. दिस मे नॉट बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द इंस्टीट्यूशन. नाउ फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज इज identification of local, regional, national, global needs and development of curriculum by COs, POs and PSOs. This is what you call as outcome based education. Now, what is expected here? It is expected that every institution should come up with outcome-based education, because course outcome, program specific outcome, ये outcome-based education का फंडा है, जो मैं आपको आगे थोड़ा समझाऊंगा कुछ स्लाइड, क्योंकि ओबीई के लिए एक अलग से हमें एक दो घंटा में हम समय बिता सकते हैं, लेकिन थोड़ा इंट्रोड्यूस मैं आपको करूंगा इसी लेक्चर में. तो अभी यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज को ऐसा लगता है, सॉरी कॉलेजेस को ऐसा लगता है कि भाई ये कोर्स बनाने का जिम्मेदारी तो यूनिवर्सिटी की है, तो ये सीओज पीओज हम क्या करें इसके लिए, इसलिए दे आर लीस्ट बॉदर. लेकिन ये आप अगर क्राइटेरिया 2 देखोगे तो इवैल्यूएशन में आपको देखना पड़ेगा कि आपने अटेनमेंट किया या नहीं. ये कॉलेजेस को भी लागू पड़ता है, कॉलेजेस को एक्सक्यूज इसमें नहीं है. तो आप अगर यूनिवर्सिटी में नहीं, तो आप अगर नहीं करोगे तो यू विल बी इन ट्रबल, एंड देयरफॉर what you need to do, आपको उसका तरीका मैं आपको बोलता हूँ. although curriculum has been designed by university, what you can do reverse engineering. आउटकम बेस्ड एजुकेशन का मैं आपको बताऊं कि उल्टा नहीं, वहां पर रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं. वहां पर क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मान लो मैं टीचर हूं, मैं एक कोर्स पढ़ा रहा हूं, लेट अस से आई एम टीचिंग माइक्रो प्रोसेसर, ओके. तो सबसे पहले टीचर की जिम्मेदारी ये है कि उस कोर्स के आउटकम क्या रहेंगे. आउटकम मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय कोर्स वेयर आई वांट माय स्टूडेंट टू एम्प्लॉय. मतलब मेरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं मेरे स्टूडेंट को कहां देखना चाहता हूं. मतलब वेदर आई वुड लाइक टू सी दो स्टूडेंट इन द कैपेसिटी ऑफ आईएएस ऑफिसर, in the capacity of like some entrepreneur, in the capacity of like whatever. So you service engineer, production engineer, whatever. So accordingly you need to see, like first of all you need to draft what would be the course outcome. Course outcome मतलब आपका वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके स्टूडेंट को आप कहाँ देखना चाहते हो, राइट. तो आप कोर्स आउटकम लिखेंगे. अकॉर्डिंगली you will be designing content. ओके तो ऐसे मेरे जैसे मान लो मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का हेड हूं, मेरे 10 टीचर हैं, मेरे 10 टीचर ने अपने अपने कोर्स आउटकम लिखे हैं, एंड देन दे हैव ड्राफ्टेड देयर कोर्स कंटेंट. एंड देन जब मेरे पास आएगा तो व्हाट आई एम गोइंग टू सी एज अ हेड, आई एम गोइंग टू सी लाइक व्हाट आर द कोर्स आउटकम ऑफ ईच एंड एवरी कोर्स, एंड अकॉर्डिंगली व्हाट विल बी प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम ऑफ एमएससी फिजिक्स. Okay, so the program specific outcome, it will be responsibility of HOD to draft the program specific outcome. Okay, and once the program specific outcome is drafted, तो क्या होगा, मेरे MSc फिजिक्स के प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम ड्राफ्ट हुए, कोर्स आउटकम है, अकॉर्डिंगली कोर्स कंटेंट भी हुआ.
अब क्या होगा, प्रोग्राम आउटकम। प्रोग्राम आउटकम की जिम्मेदारी किसकी होगी, मेरे ऊपर जो मान लो साइंस के डीन की जिम्मेदारी होगी कि एमएससी एज ए होल, एमएससी एज ए होल इज वन प्रोग्राम, व्हाट वुड बी प्रोग्राम आउटकम, मतलब एमएससी करने के बाद मेरे स्टूडेंट में कहां देखना चाहता हूं, एमएससी करने के बाद, राइट। प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम में क्या देखूंगा मैं, कि एमएससी फिजिक्स करने के बाद मैं क्या कहां देखना चाहता हूं। तो उसका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का एक मॉडल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब करने की जरूरत है। तो आप सोचेंगे कि ये तो करिकुलम डिजाइनिंग यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। यस आई एग्री, बट व्हाट कॉलेजेस कैन डू, दे कैन डू द रिवर्स इंजीनियरिंग। आपके पास सिलेबस पूरा रेडी है ऑन, ये मतलब सही तरीका नहीं है, बट दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। मान लो आप ऐसे यूनिवर्सिटी के आप कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हो कि जिसके जो यूनिवर्सिटी का आउटकम बेस्ड एजुकेशन नहीं है, उनका ओबी बेस्ड करिकुलम नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ड्राफ्ट योर कोर्स आउटकम। आप आपके टीचर को बोलिए कि जो सिलेबस है, ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस आप कोर्स आउटकम लिखिए। आप वो कंसर्न एचओडी के बोलिए कि ऑन द बेसिस ऑफ द कोर्स आउटकम यू राइट प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, एंड आपके कॉलेज की कमिटी करिए, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, आप कॉलेज का पर्टिकुलरली आप वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम आप लिखिए प्रोग्राम आउटकम। तो ये आपका वो भी का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, देन ओनली आप अटेनमेंट का आप देख पाओगे। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग। आप ये नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। आप सुपरफिशियल लिखकर नहीं चलेगा, आपको इन डेप्थ आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आप कुछ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कुछ ट्रेनिंग भी कर सकते हो। देन इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट एंड एड ऑन डिप्लोमा कोर्सेज। फिर यहाँ पर भी वैसे ही होता है कि बहुत लोगों को लगता है कि ये सब करने के लिए यूनिवर्सिटी का अप्रोच जरूरी है। एब्सोल्युटली नहीं है। You can start courses, any number of courses on your own. You don't need any approval from university. हाँ, यूनिवर्सिटी को आप अगर चाहते हो सर्टिफिकेशन यूनिवर्सिटी करे, then you need university recognition. लेकिन सर्टिफिकेशन यूनिवर्सिटी करने की जरूरत नहीं है, because you can for add-on and certificate courses you can have your own courses. देखिए, दो तरीके होते हैं। एक ऐसा है कि आप कोर्स लिखकर यूनिवर्सिटी का अप्रोच मतलब ले सकते हो, that is one system. लेकिन but in that route you will have to wait for like years together. तो मेरा ये मतलब आप वो भी कर सकते हैं, एंड ऑन कॉन्करेंटली आप अपने लेवल पे आप कोर्सेज डिजाइन करिए एंड यू स्टार्ट द कोर्सेज। आपका सर्टिफिकेशन आपके लेवल पे आप करिए, देन यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। इंट्रोडक्शन टू कोर्सेज हैविंग फोकस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये फिर से ये होगा, क्योंकि अगर सिलेबस आप डिजाइन नहीं कर रहे तो ये कैसे आप एड्रेस करोगे। तो मैं कहूंगा कि आप एड ऑन कोर्सेज इसीलिए है, आप एड ऑन कोर्सेज करोगे तो देन यू कैन हैव सम कोर्सेज व्हिच विल हैव मोर फोकस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी, यू कैन हैव कोर्सेज व्हिच विल हैव मोर फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल कोट करूंगा कि मेरा एक फ्रेंड है केएलई, कर्नाटका टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज में। तो उन्होंने बताया कि उनका सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स एक समय था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वेयर यूज्ड टू स्ट्रगल फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब उनका मतलब एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट बड़ा कम था। तो उन्होंने सोचा कि भाई क्या किया जाए। सो व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड वन वैल्यू एडिशन कोर्सेस, one course only. So as a result of that, because of that one value addition course, which is in addition to regular curriculum, they could see that there was a substantial increase in employability of the student. So like that आपको करना पड़ेगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि value addition courses जिससे entrepreneurship employability बढ़ सके, that need to be incorporated. Launching new courses and program, यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि न्यू कोर्सेज जो है एंड प्रोग्राम जो है, इफ यू आर फ्रॉम कॉलेजेस, yes you will be dependent on university, but if you are from university के लोग भी, हमारे पास बड़ा घसा पीटा तरीका है, क्योंकि हम 3 साल या 5 साल तो सिलेबस रिवाइज नहीं करते। लेकिन ट्रूली स्पीकिंग यहाँ पर होल प्रोग्राम को आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, न्यू कोर्सेज भी है। न्यू कोर्सेज डजंट मीन दैट लाइक पूरा प्रोग्राम आपके जैसे कि एमएससी फिजिक्स प्रोग्राम है, आप हर साल एक एक पेपर आप चेंज करिए, कुछ चेंजेस करिए। आप अगर 2-2, 3-3 कोर्सेज एवरी ईयर इफ यू आर एडिंग, you will be able to get marks, क्योंकि एक ही बार हर साल का देना है आपको। आप अगर इस साल में आप कुछ नहीं लिखोगे इसमें, आप सोचेंगे कि नहीं इस साल हमने कोई नया कोर्स शुरू नहीं किया, so you are not going to set, you will be losing the mark. So you need to ensure every year आपके कुछ नए कोर्सेस हो, every year आपके कुछ नए प्रोग्राम भी हो, क्योंकि नए प्रोग्राम का मतलब इसीलिए जरूरी है। आप अगर सोचेंगे कि भाई 5 साल में मेरे एक पर्टिकुलर, जैसे कि 5 साल में मेरा 19-20 है, 19-20 में मैंने एक भी प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया, इसका मतलब यह है कि मतलब हमारा यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है सही तरीके से बच्चों का फ्यूचर हम देखते नहीं।
because if I want my university, my student to be employed, my student to be placed at appropriate places, then new programs need to be created, need to be launched every year. Okay, not 10 नहीं, कम से कम एक तो वी नीड टू एंश्योर, अगर नैक में अगर अच्छे मार्क्स भी लेने हैं और बच्चों का भला भी देखना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि गाइडलाइंस क्या है, अकॉर्डिंगली हमें चेंजेस करने पड़ेंगे. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रू सीबीसीएस एंड यूजीपीजी लेवल. हमारे पास जो सीबीसीएस, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए नाम के लिए सीबीसीएस है हमारे पास, नाम के लिए. नैक में हमें मार्क्स भी मिलेंगे. दैट इज वाई मैंने आपको सबसे पहले बताया कि फॉरगेट अबाउट नैक ग्रेड. नैक ग्रेड के आगे हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रूली स्पीकिंग रियल सीबीसीएस हमारे पास है ही नहीं. दोज आर इलेक्टिव्स ओनली. हमारे पास क्या होता है ना, हम बच्चों को बोलते हैं कि ठीक है हमारे पास 3-4 इलेक्टिव्स में भी क्या होता है, हमारे पास 5 इलेक्टिव होते हैं, लेकिन बच्चों को बोलते हैं कि चलो बच्चों आप एक ही लेना है, आपको 5 अवेलेबल होते हैं, लेकिन बच्चे एक ही चूज करते हैं. वो इलेक्टिव रियल में होता ही नहीं है. तो इसलिए नैक के नैक मतलब बियॉन्ड द नैक हमें देखना पड़ेगा, बियॉन्ड असेसमेंट हमें देखना पड़ेगा कि ये सब हम जो कर रहे हैं, वी नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीसीएस, यूनिवर्सिटीज के लिए भी एंड कॉलेजेस के लिए भी. फ्लेक्सिबिलिटी, जहां तक एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी का सवाल, इट इज नॉट ओनली सीबीसीएस. आप बच्चों को ऑप्शंस कितना देते हो. ऑप्शन का मतलब ये है कि जैसे कि कॉम्बिनेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन यू आर प्रोवाइडिंग. So you need to provide as many combinations as you can. अगर ये दोगे तो ही आप नैक से बच पाओगे. Then integration of cross-cutting issues relevant to gender, environment, sustainability, human values and professional ethics into curriculum. यहाँ पर भी हम क्या करते, यहाँ पर भी हमें हम समझने की कोशिश ही नहीं करते. हमें क्या लगता है कि ठीक है मेरे यूनिवर्सिटी में, मेरे कॉलेज में एक कोर्स ह्यूमन वैल्यू पे है, एक कोर्स जेंडर इक्वालिटी पे है, एक कोर्स एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी पे है, तो मेरा काम हो गया. नो, it is not at all like this. NAAC is expecting that every student should get the benefit of these courses. Every student. एक कोर्स में ऐसा नहीं है. And therefore, you need to ensure ये जो courses है, what the best way could be, what you can do. आप अगर यूनिवर्सिटी में हो तो यू कैन मेक इट एज मेनी इलेक्टिव एज यू कैन. ओपन इलेक्टिव रखिए. आप अगर यूनिवर्सिटी से हो तो ओपन इलेक्टिव रखिए. जेंडर इक्वालिटी पे, एनवायरमेंट पे, सस्टेनेबिलिटी पे, ह्यूमन वैल्यूज पे ओपन इलेक्टिव रखिए. एंड ओपन इलेक्टिव में भी कुछ इलेक्टिव ऐसे है कि यू मेक इट मैंडेटरी फॉर एवरीबडी. मेक इट मैंडेटरी फॉर एवरीबडी. जैसे कि हर सेमेस्टर में एक आप मैंडेटरी करिए. ओके, कॉलेज में आप हो, आप ये नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन हैव एड ऑन कोर्सेज. You have add-on courses based on this. So and you can make it sure that every student is going to enroll. आप सर्टिफिकेशन आपके लेवल पर दीजिए. आप अगर ऐसा करोगे, नैक को अगर आप सर्टिफिकेट बताओगे, डेफिनेटली यू कैन गेट गुड मार्क्स. इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड कोर्सेज. वैल्यू एडेड कोर्सेज में बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में. लोगों को ऐसा लगता है कि वैल्यू एडिशन कोर्सेज, मेरा फिजिक्स में एक कोर्स है, उसी का एक कोर्स मैं वैल्यू एडिशन कोर्स बताता हूँ, उसी का कोर्स. नो, नॉट एट ऑल. And moreover, value addition course doesn't mean that only soft skill. खाली personality development is not only value added course. That is one aspect. लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि value addition, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास MSc इलेक्ट्रॉनिक डिग्री है. ओके, MSc इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम है, लेकिन मेरे प्रोग्राम में ऑप्टिकल फाइबर पे कोई कोर्स नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी. राइट. अगर MSc इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट अगर होगा और ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी अगर उसको पता नहीं होगा, तो क्या होगा, मार्केट में जाने के बाद ही विल बी हैंडीकैप्ड. So what I need to do, since it is not there in the curriculum, I need to start one more course. That could be add-on course, right? That could be value addition course. But value addition course minimum contact hours 30-32 होने चाहिए. वो minimum NAAC ने मार्क करके रखा है. That you need to ensure. इस टाइप के कोर्सेज होना जरूरी है. Then field project, internship. यहाँ पर भी लोग कहते हैं कि नहीं हमारे करिकुलम में तो फील्ड प्रोजेक्ट है ही नहीं. ये तो यूनिवर्सिटी ने करिकुलम दिया, उसमें तो है ही नहीं, तो हम कैसा करेंगे. आप अगर नहीं करोगे तो you will be losing mark. आपको मैं तरीका बताता हूँ कि ये कैसे करना है. आपको बताऊं, फॉरगेट अबाउट यूनिवर्सिटी ने किया, फाइन. यूनिवर्सिटी करिकुलम में नहीं है, यू कैन इनिशिएट एट ऑन योर ओन. आप कॉलेज में हो, आपका खुद का एक प्रोग्राम तैयार करिए. आप फाइनल ईयर के बच्चे, आप ऐसा कर सकते हैं कि एवरी ईयर स्टूडेंट आर गोइंग टू डू दिस काइंड ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट, दिस काइंड ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम मैंडेटरी फॉर 15 days. You can do at college level. You can do the independent assessment. You can do the additional certification. If you can do it, you can obviously आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो. बाद में है फीडबैक प्रोसेस. फीडबैक में भी हम मॉकरी करते. आई एम वेरी आउटस्पोकन. Usually whenever I will be speaking, I always going to be very outspoken. हम मॉकरी करते. स्टूडेंट का फीडबैक, टीचर का फीडबैक, एम्प्लॉय का फीडबैक, आजकल ऑनलाइन फीडबैक है.
लेकिन ऑनलाइन फीडबैक में भी हम मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि देखिए NAC इज द वन, लाइक इसलिए मैंने बताया ना कि एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होगा। मतलब आप अगर ये डेटा मैनिपुलेशन करके अगर आप अगर NAC से अच्छा ग्रेड पाओगे भी, तो इंटरनल इवैल्यूएशन में कहाँ पाओगे आप अपने आप को? इंटरनल इवैल्यूएशन में अपने आप को कहाँ पाओगे आप? सो यू विल बी ग्रेट ट्रबल। एंड मोर ओवर आप एक बार करोगे, लेकिन आप तो क्या है, हमारे पास एक सिस्टम बड़ी मतलब बुरा है कि क्या होता है, हमारे पास कॉलेज हुआ, यूनिवर्सिटी, एक पर्टिकुलर XYZ पर्सन होता है, IQAC को देखता है एक साइकिल के लिए, एंड देन वंस द जॉब इज ओवर उसको निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट टाइम दूसरा कोई बंदा आके बैठता है वहां पर, उनको पता भी नहीं होता बेचारे को, फिर से राइट फ्रॉम ABCD, राइट फ्रॉम स्क्रैच उसको पढ़ना पड़ता है। रादर I would suggest you to do this. Like you should identify a relatively young person. He should be given the responsibility of IQAC, and he should be given that responsibility till his or her retirement, so that he will be more consistent. He will be able to implement in true sense the quality, able to create quality culture, and he will be able to implement many good policies. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट रियल फीडबैक आप लेने की कोशिश करिए, रियल फीडबैक, टीचर्स का फीडबैक, एम्प्लॉय पेरेंट्स का भी हटा दिया गया मैंने जैसा बताया, alumni का भी, don't manage anything, real, you create an online portal, nowadays it is very easy, create an online portal, collect the feedback, do the systematic analysis, ask your computer person to do the analysis, write a software, simple software to do the analysis, क्योंकि NAC एक्सपेक्ट करता है कि आफ्टर कलेक्शन आप क्या एनालिसिस कर रहे हो, एंड एक्शन टेकन क्या है। आपको बताऊं, आप अगर किसी इंस्टीट्यूट के एक्शन टेकन अगर देखोगे ना, हंसोगे आप, लिटरली हंसोगे। एक्शन टेकन का मतलब ये होता है कि मतलब देखने से ही पता चलता है कि एवरीथिंग इज बीइंग मैनेज्ड। यार क्या कर रहे हो? डोंट डू दिस। ट्रूली स्पीकिंग, व्हाट वी शुड डू, वी नीड टू सी इन रियल सेंस व्हाट आर द रियल फीडबैक। ओके, फीडबैक आने के बाद रिस्पेक्टिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में दैट उसका बड़ा मेटिकुलसली उसका एनालिसिस होना चाहिए। सॉफ्टवेयर से एनालिसिस बाद में उसका मेटिकुलसली उसके कॉज एंड कंसर्न देखने चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली whether it is related to teachers, whether it is related to curriculum, accordingly those changes need to be adopted. वो एक्शन टेकन अपेक्षित होता है। वो एक्शन टेकन है कि क्या सजेशंस थे, आपने क्या एक्शन लिए, उसके रिजल्ट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा है, NAC आपको बताऊं, मार्क्स तभी मिलेंगे कि एक्शन टेकन आप बता रहे हो, लेकिन उसके रिजल्ट्स क्या कहाँ पर है। जैसे कि बहुत बार आपको बोलता हूँ कि हम कहते हैं कि भाई हमने 10 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने के बाद व्हाट इज द मेजरेबल आउटकम? खाली कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने से नहीं होगा, मेजरेबल आउटकम क्या है? जैसे कि IPR फॉर एग्जांपल, NAC पूछता है कि हाउ मेनी IPR वर्कशॉप यू हैव कंडक्टेड। फाइन, मैंने बता दिया कि मैंने 20 वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। अच्छा ठीक है, व्हाट इज मेजरेबल आउटकम? 20 वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने के बाद मेरा IPR का स्टेटस क्या है? पहले मेरे पास कुछ IPR नहीं था, एक भी नहीं था, अभी क्या है? अगर पहले और अभी कुछ चेंजेस नहीं है तो व्हाट इज यूज ऑफ दिस? So whenever we are organizing any activity, we need to show what are the measurable outcome. If you don't have those measurable outcome, let me tell you my friend, it will be really difficult for you to get the marks. लेकिन आप अगर सीरियसली करोगे ये, तो डेफिनेटली आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप काम करते रहो, आपको NAC का अच्छा ग्रेड मिलते रहेगा। सेकंड क्राइटेरिया, व्हाट आर द चैलेंजेस टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन में? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम अदर स्टेट एंड कंट्रीज, ये तो अभी निकाला गया, इसलिए मैंने उसको स्ट्राइक आउट किया। डिमांड रेशियो, यहाँ पर काफी ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि देयर आर मेनी कॉलेजेस, वहां पर स्टूडेंट ओवर फ्लडेड होते हैं। मतलब अगर 20 इंटेक्ट है तो 50 इंटेक्ट है तो 200 बच्चे रहेंगे। लेकिन देयर आर मेनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज टू, कुछ ऐसे कोर्सेस है कि जहां पर बच्चों की डिमांड ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, डिमांड नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसकी सीट रिड्यूस कर देते, या तो हम ब्लेम करते क्या सिस्टम को ब्लेम करते। नो, अगर आपका डिमांड रेशियो अच्छा नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा कि व्हाई इट इज हैपनिंग। इट इज नॉट ओनली द करिकुलम इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अगर आपका डिमांड रेशियो अगर डिस्टर्ब है तो इसका मतलब आपका करिकुलम अच्छा नहीं है, आप समहाउ यू आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट स्टूडेंट। क्योंकि आजकल देखिए आपको कैसा है ना, आपका ये इसको बिजनेस मॉडल आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई मीन यूनिवर्सिटी शुड बी कंसीडर एज ए बिजनेस मॉडल, कॉलेज शुड बी कंसीडर एज ए बिजनेस मॉडल। आपको सेल करना पड़ेगा आपके कोर्सेज। आपके कोर्सेज को कोई ले नहीं रहा, डिमांड कम है इसका मतलब ले नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, आप मार्केट हम
आप देखिए जब हम मॉल में जाते हैं तो वी आर गोइंग टू हैव ए नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, तो हम उसी शॉप में जाएंगे कि जहां पर जिसकी यूटिलिटी बेटर हो, जिसकी कॉस्ट कम हो, जिसका इम्पैक्ट अच्छा हो, राइट। अगर वो नहीं करोगे, आपके सिलेबस की खामियां अगर, इसलिए तो फीडबैक इंपॉर्टेंट कर रहे हैं ना। अगर फीडबैक आपका रियल सेंस में, अगर फीडबैक, क्योंकि देखिए डिमांड रेशियो इज कनेक्टेड टू फीडबैक। आप अगर फीडबैक अगर सीरियसली अगर कलेक्ट नहीं करोगे तो आपका डिमांड रेशियो कभी भी अच्छा नहीं आएगा। So, but if you are collecting feedback seriously, if you are doing analysis and taking actions accordingly, genuinely and very honestly, and let me tell you, your demand ratio can be corrected. Identification of slow learners and advanced learners, ये भी बताऊं कि ज्यादातर इंस्टीट्यूट में यहाँ पर भी मॉकरी होती है। स्लो लर्नर्स और एडवांस लर्नर की हम आइडेंटिफिकेशन असलियत में जो तरीके से होनी चाहिए वो करते ही नहीं है। There are, I mean, let me tell you the scientific way for identification of slow learners and advanced learners. आप अगर ऐसा करोगे डेफिनेटली अच्छे मार्क पाओगे, नहीं करोगे तो you may be in trouble. क्या होना चाहिए आपको बताऊं, जैसे कि मुझे मान लो मैं ये कोर्स पढ़ा रहा हूं, मेरे कोर्स में मुझे जैसे कि डिजिटल मैथमेटिकल फिजिक्स फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रहा हूं मैथमेटिकल फिजिक्स। अभी क्या है ना, एमएससी फिजिक्स में एलिजिबिलिटी में उसका बीएससी में मैथ होना जरूरी नहीं है। Even if he don't have mathematics at BSc level, still he can be admitted for MSc Physics. But जैसे कि मान लो मेरे पास 50 बच्चे हैं, उसमें से 25 स्टूडेंट जो है उनका मैथमेटिक्स था, और 25 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका मैथमेटिक्स बिल्कुल ही नहीं था। तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली दो 25 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्ट्रगल लाइक एनीथिंग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट इन द बिगिनिंग जो कोर्स मैं पढ़ाने वाला हूं उस कोर्स के कुछ लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। स्लो लर्नर्स, एडवांस लर्नर आइडेंटिफाई करने का साइंटिफिक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके 2-3 एक फंडामेंटल लेक्चर्स कि मैं मतलब वो कोर्स में क्या है, कौन से टॉपिक रहेंगे, और उसके कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट आप बताओगे स्टूडेंट को। On the basis of those fundamental aspects, you will have to organize one MCQ test, maybe 20 marks, 25 marks. On the basis of the fundamental lectures you have conducted right in the beginning of your career, year, right? On the basis of that MCQ, आपको पता चलेगा, आप लेवल आप डिसाइड कर सकते हो कि the student who is securing less than 50 should be considered as slow learners, more than 50 should be considered as advanced learner. ये लेवल आप डिसाइड कर सकते हो। It may vary from course to course. Let me tell you, कोई कोर्स अगर ज्यादा टफ है, आप 40 भी आपका एडवांस लर्नर हो सकता है, बहुत ज्यादा टफ है तो। सो दैट इज वाई आपके पास, अगर आप एचओडी हो, आपके पास 10 अलग अलग कोर्सेज है, 10 अलग अलग कोर्सेज का थ्रेशोल्ड जो है एडवांस और स्लो लर्नर डिस्टिंग्विश करने का अलग अलग हो सकता है। एंड मोरओवर स्लो लर्नर, मेरे पास जैसे कि मेरे डिपार्टमेंट में 2 टीचर है, तो मेरे पास एक स्टूडेंट स्लो लर्नर हो सकता है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट के लिए वो स्लो लर्नर होगा ऐसे जरूर नहीं है। He can be a best, advanced learner in that course, and therefore slow learner इस टाइप से उसको इस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। Once we identify that, we need to prepare the list. Okay, लिस्ट तैयार करने के बाद हमें either we have to conduct, उसको कैसे करना पड़ेगा, either we have to conduct special classes which we call as remedial classes, या तो दूसरा तरीका ये है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें whenever we are teaching we need to take care of those slow learner students, special attention आप दीजिए उनके लिए। आप एक कंसेप्ट पढ़ाने के बाद आप उनके लिए अलग से समय दीजिए, आप either in the same lecture or you can organize separate lecture. And then जब पहला इंटरनल टेस्ट होगा तो आप देखोगे कि पहले जो स्लो लर्नर स्टूडेंट थे मेरे, जो आउट ऑफ 50 अगर 25 स्लो लर्नर थे, तो आप देखिए कि फर्स्ट इंटरनल टेस्ट में 25 के कितने रह गए। अगर पूरे के पूरे अगर अभी भी स्लो लर्नर्स है, इसका मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका जो है सही नहीं है, मुझे करेक्शन करना पड़ेगा। सो दैट करेक्शन नीड टू बी डन। लेट अस से आउट ऑफ 25 I could like transform at least 5 students from slow to advanced learner. This is going to be achievement for me. And then similarly you need to keep track of those students after second internal test, and similarly after semester end examination. So this is how you need to identify and take care of slow learners and advanced learners. This is not at all happening in most of the institution. That is why I said this is one of the challenge. इसलिए मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि खाली डेटा तैयार करके नहीं चलेगा, हमें देखना पड़ेगा कि डेटा तैयार करते समय हम कितना ऑनेस्ट है। इसलिए मैं AQR पे बाद में आऊंगा, क्योंकि ये सब AQR के ही पॉइंट ही है। आप अगर ये डेटा अगर सही नहीं करोगे तो AQR क्या तैयार करोगे आप। द स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग लर्निंग,
यहाँ पर भी बड़ा हमारे पास कैसा होता है ना, स्टूडेंट सेंट्रिक होता ही नहीं, हम वन वे टीचिंग होता है, हम खाली बोलना पसंद करते हैं, हम सुनना कभी पसंद नहीं करते। क्लास में ट्रूली स्पीकिंग इट हैज नीड टू बी, क्लास नीड टू बी हाईली इंटरेक्टिव। आप कोलैबोरेटिव टीचिंग होनी चाहिए, पार्टिसिपेटिव टीचिंग होनी चाहिए, बच्चों को आप कभी कभी बच्चों को पढ़ाने के लिए बोलना चाहिए। सो यू नीड टू लाइक टीचिंग पेडागोगी जो है आपको काफी सब्सटेंशियली आपको चेंज करनी पड़ेगी, एंड विच इज नॉट हैपनिंग। हम आईसीटी इक्विप्ड क्लासरूम बताते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा होता है कि या तो कंप्यूटर होता नहीं, या तो एक ही पूरे यूनिवर्सिटी में 2-3 क्लासेस होते हैं, या तो पूरे कॉलेज में यू विल फाइंड ओनली वन आईसीटी इक्विप्ड क्लासरूम। आप कैसे मैनेज करोगे? नो, each and if you are having each and every classroom ICT equipped, then only you can easily manage, you can participative learning, e-resources जो include use of ICT including LMS और e-resources। LMS तो छोड़िए, LMS भी फ्री, LMS भी अवेलेबल है, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं। लेकिन e-resources तो कम से कम हम यूज करते क्या, PPTs हम बताते क्या, कुछ वीडियोस डाउनलोड करके हम स्टूडेंट को बताते क्या। यस, देयर आर सम स्टूडेंट, देयर आर सम टीचर्स, लेकिन अगर मेरे कॉलेज में 100 अगर टीचर है, कितने टीचर्स ये सब करते? देयर विल बी वेरी वेरी लेस नंबर ऑफ टीचर्स। लेकिन ये सभी के सभी टीचर ने करना जरूरी है। देन स्टूडेंट मेंटर स्कीम, स्टूडेंट मेंटर स्कीम में भी यही प्रॉब्लम है, हम यहाँ पर भी मौकरी करते। स्टूडेंट मेंटर स्कीम कैसी होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट मेंटर स्कीम अगर रियलिटी में आप अगर करना चाहो तो क्या करना चाहिए? हम क्या करते हैं कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्लास को, आई विल बी लाइक देयर मेंटर। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। क्योंकि अगर मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं उनका मेंटर रहूंगा, तो अगर मेरे टीचिंग के कुछ इश्यूज ग्रीवेंसेस रहेंगे तो वो किसके पास जाएगा? उसका ऑप्शन ही नहीं रहेगा। इसलिए क्या होना चाहिए कि जैसे कि मान लो मेरे डिपार्टमेंट में 100 स्टूडेंट है और मेरे पास अगर 10 टीचर है, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ माय क्लास व्हाट आई शुड डू, आई शुड डिस्ट्रीब्यूट 100 स्टूडेंट अमंग द 10 टीचर्स। तो हर टीचर के पास 10 विद्यार्थी रहेंगे, एंड देन व्हाट द टीचर्स शुड डू एवरी मंथ, रादर आई वुड से एवरी फोर्टनाइट, टीचर हैज टू ऑर्गेनाइज मीटिंग विद दो स्टूडेंट, जो कि हो नहीं रहा। स्टूडेंट मेंटर स्कीम हम बता दें कि हमारे पास है, but it is not happening, let me tell you, it is not happening. So student mentor scheme में हर टीचर ने रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ ना, ये पूरे एक्टिविटीज के रिकॉर्ड होनी चाहिए। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि एवरी फोर्टनाइट एक मीटिंग होनी चाहिए, तो मीटिंग का नोटिफिकेशन होगा, बच्चों की सिग्नेचर होगी, आपने बाकायदा मीटिंग ली, मीटिंग में क्या इश्यूज डिस्कस किए, उसके मिनट्स क्या है। इट्स नॉट ओनली मिनट्स, एक्शन टेकन, आपके मिनट्स रेडी किए। कुछ स्टूडेंट ने बताया कि जैसे कि मान लो मेरे टीचिंग के बारे में किसी और स्टूडेंट ने उसके मेंटर के पास बताया कि सिरसा सर का पढ़ाना थोड़ा ऐसा वैसा है, इसको हमें कुछ करेक्शन चाहिए। तो व्हाट दैट टीचर शुड डू, टीचर शुड गो टू द एचओडी, ही शुड इन्फॉर्म एचओडी ऑन पेपर कि one of my mentor, one of my mentee has launched this kind of complaint. I had a discussion with him. Discussion करने के बाद ये पता चला और ये टीचर का ये प्रॉब्लम है। एचओडी के थ्रू, एचओडी को आप राइटिंग में दोगे, एचओडी इज गोइंग टू राइट प्रोफेसर सिरसाट की, प्रोफेसर सिरसाट ऐसा है आपके टीचिंग के बारे में, ये XYZ स्टूडेंट ने ये इश्यूज निकाला है, यू काइंडली मेक द करेक्शंस। सो दिस काइंड ऑफ एक्शन टेकन नीड टू बी देयर, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट हैपनिंग। इवैल्यूएशन मेथड में हमारे पास बड़ा घसा पीटा मेथड हम यूज करते। आप फिर से कहोगे कि ये तो यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड मेथड है, आई एग्री, यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड मेथड है, लेकिन मैं बताऊं कि इंटरनल जो है, इंटरनल स्काई इज द ओनली लिमिट। यूनिवर्सिटी ने बताया कि 2 टेस्ट लेने हैं, मिनिमम 2 टेस्ट लेने हैं। यूनिवर्सिटी ने ये नहीं बताया कि आप ज्यादा नहीं ले सकते, यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट, क्योंकि आपको ये पूछा जाता है, आप अगर AQR देखोगे तो वहां पर पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स you have adopted in continuous internal evaluation। फिर आप कहोगे कि यूनिवर्सिटी ने हमें पैटर्न दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते, so you will be losing mark, let me tell you। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी का पैटर्न है, आपको 20 मार्क आउट ऑफ 80-20 का पैटर्न है, 20 मार्क देने हैं, फाइन, लेकिन 20 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हो। यूनिवर्सिटी का पैटर्न है, यूनिवर्सिटी पैटर्न में आप मार्क्स सबमिट करिए ना, लेकिन इवैल्यूएशन असेसमेंट आपके लेवल पे आप कर सकते हो। That can be done, like you can do seminar, you can do small project, you can do quiz, like any sort of activities you can conduct, and you have the many activities, and then accumulate those marks, convert that into university format and submit it। So this is how you need to adopt। स्टूडेंट कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस अबाउट इवैल्यूएशन, आप देखिए आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे
तो ग्रीवेंसेस रहेंगे, लेकिन कॉलेज लेवल पे भी ग्रीवेंसेस होने चाहिए, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज कॉलेज में होते हैं। रिफॉर्म्स, ये मैं रिफॉर्म्स की बात कर रहा था। अटेनमेंट इन सीओ पीओज एंड पीएसओ, अटेनमेंट के लिए एक अलग लेक्चर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं अटेनमेंट यहाँ नहीं बता सकता। अटेनमेंट का एक बड़ा स्टैंडर्ड तरीका है जो हमें पहले, क्योंकि हम जब सिलेबस फ्रेम करेंगे आउटकम बेस्ड एजुकेशन का, तो वहां पर हमें लेवल, टारगेट लेवल हमें फिक्स करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा कि एक तो ब्लूम टेक्सोनॉमी रेफर करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं बताऊंगा लेकिन पूरा डिटेल बता नहीं पाऊंगा। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी के हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर आपको सेट करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू सी वेदर द स्टूडेंट्स हैव अटेन दैट लेवल और नॉट। दैट इज, दिस इज व्हाट NAAC इज एक्सपेक्टिंग। ज्यादातर कॉलेज में, फॉरगेट अबाउट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में भी होता नहीं। स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे रिगार्डिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो यहाँ पर देखिए, आप स्टूडेंट को मैनेज नहीं कर सकते। अगर मान लो आप अगर जेन्युइन नहीं हो, तो स्टूडेंट आर गोइंग टू, आपके सामने वो बताएंगे कि हाँ सर हम अच्छा फीडबैक देते, लेकिन दे आर गोइंग टू यू नो लाइक NAAC हैज प्रोवाइडेड दिस प्लेटफॉर्म। तो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे में अच्छे खासे मार्क्स है। एंड इट्स नॉट ओनली मार्क्स, मैंने बताया ना कि वहां पर तो ठीक है कम मार्क्स रहेंगे, लेकिन कुछ कंप्लेंट्स रहेंगे जो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बच्चे करेंगे, एंड जब पीए टीम आएगी तो पीए टीम देखेंगी, अगर पीए टीम ने क्रॉस वेरीफाई करके पता चला कि यस दैट वाज करेक्ट, तो आपका जो पीए टीम इवैल्यूएशन होगा उसके ऊपर भी उसका असर होगा। एंड देयरफॉर यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे। क्राइटेरिया 3 रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन, प्रमोशन ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज। ये यूजीपीजी कॉलेज के लिए नहीं है, लेकिन चैलेंजिंग इसीलिए है कि ज्यादातर इवन यूनिवर्सिटीज में भी बहुत अच्छे हाल नहीं है आजकल, फैसिलिटीज नहीं है रिसर्च के, इसलिए इसमें मार्क्स लेना बड़ा मुश्किल होता है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर रिसर्च, yeah, this is very important. Like what university or college has to do, whatever available resources you have, you need to mobilize those resources. It's not, these resources could be intellectual resources, these resources could be physical resources. Like for example, you have got good facilities available in one department, right, which is not being accessible to other department, so you are not properly mobilizing that. So what you need to do, you need to make it available for everybody, number one. Like for example, you have got wonderful intellectual manpower available in your college or university, but you are not utilizing that, right? So you need to ensure that whatever resources you have for research, that need to be mobilized properly, and that accordingly you need to identify those resources, mobilize those, and see what are the outcome. It's not only mobilization, you need to ensure outcome as well. इनोवेशन इकोसिस्टम नॉट एप्लीकेबल फॉर यूजी कॉलेजेस, लेकिन इनोवेशन इकोसिस्टम का मैं बताऊं कि कैसे करना है। इनोवेशन इकोसिस्टम doesn't mean that you need to have incubation center, let me tell you, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि we need to have incubation center. No, incubation center नहीं भी रहा तो भी आप इकोसिस्टम को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कैसे करना है, जैसे कि मान लो आपके पास पीजी है, राइट, तो आपको क्या करना है, राइट फ्रॉम बिगिनिंग you need to ensure that students are research oriented. स्टूडेंट्स आर रिसर्च ओरिएंटेड, मतलब बच्चों को आपको बढ़ावा देना पड़ेगा रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए। इनोवेशन का भी देखो, इनोवेशन का डेफिनेशन भी अभी चेंज हुआ। पहले क्या था कि the invention which is novel, which we used to be referred as innovation. No, now innovation which is novel and which is commercially viable, that innovation, that invention is being referred as innovation now. So what the time ये चेंज हो रहा है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग बीएस, फॉरगेट अबाउट एमएससी, आपको बीएससी एमएससी बच्चों को कुछ आइडिया जनरेशन कैंप्स, आइडिया जनरेशन वर्कशॉप आपको ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। इट्स नॉट ओनली सेपरेट वर्कशॉप, यू नीड टू आस्क योर टीचर्स, सभी टीचर को बोलना पड़ेगा कि देखो आपको स्टूडेंट को फ्रीडम देना है। स्टूडेंट को जब भी आप पढ़ाओगे तो आपको स्टूडेंट को बोलना पड़ेगा कि यू काइंडली एक्सप्लोर दिस टॉपिक and see what kind of novelty, what kind of advancement in this topic can be done. बच्चों को आप एक्सप्लोर करने के लिए बोलिए, and then secondly you take review whether student has explored it or not. So there will be some like very conventional workshop, ideation workshop, idea generation workshop, and non conventionally भी आप जो है बच्चों को आप बोल सकते हो, right? And then with this kind of activities you are going to have a lot of ideas from students. Whenever the students are coming to you with lot of ideas, you need to provide some platform. Ecosystem is, this is what ecosystem is. Platform doesn't mean that the physical space.
Platform means you provide him guidance. Sometimes you provide him financial assistance, guidance, and technical support, and making sure that whatever idea he is having, he will be able to realize that ideas physically. I mean, अगर उसके पास कुछ theoretical ideas है, तो experiment अगर करना चाहता है, तो आपको मतलब प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा कि स्टूडेंट वो एक्सपेरिमेंट कर पाए, बिकॉज अगर वो एक्सपेरिमेंट करेगा तो पता चलेगा कि उसकी जो आइडियाज थी वो आइडियाज आर वर्किंग और नॉट, राइट? सो ही कैन गो वन स्टेप अहेड. सो दिस इज द स्मॉल एग्जांपल ऑफ क्रिएशन ऑफ इकोसिस्टम फॉर स्टूडेंट. फैकल्टी मेंबर्स को भी आपको इनकरेज करना पड़ेगा. मतलब यू हैव टू प्रोवाइड सम सीड फंडिंग. Seed funding doesn't mean that it is in the lakhs. It could be in thousands only. Like आप 2000 दीजिए, 3000 दीजिए, 5000 दीजिए, 10,000 दीजिए. Provide some funding and ask them to do whatever you want. Provide them freedom, right? And then see like what kind of innovation coming out of those young faculty members. So this kind of system, this kind of environment need to be created in the respective institution. इसके लिए incubation center होना जरूरी नहीं है. रहा तो सोने पे सुहागा, नहीं रहा तो still it is manageable. Research publication and awards, यहाँ पर भी ज्यादातर मौकरी हो रही है. मौकरी इन द सेंस अवेयरनेस नहीं है. यू हैव टू क्रिएट अवेयरनेस, क्योंकि आपको अगर खाली मार्क्स लेकर नहीं चलेगा. यू हैव टू क्रिएट अवेयरनेस. आपको स्टूडेंट को, पीजी स्टूडेंट को इन पर्टिकुलर एंड फैकल्टी मेंबर को बताना पड़ेगा कि क्वालिटी जर्नल्स को मतलब कौन सी क्वालिटी जर्नल्स हैं. आजकल आपको पता, फॉर्चुनेटली नाउ यूजीसी केयर इज केम इनटू एग्जिस्टेंस. अर्लियर पहले ऐसा था कि यूजीसी के बड़े हॉरिबल जर्नल्स थे जो जिसका कोई अपना स्टैंडर्ड नहीं था. Fortunately now most of the UGC journals are good, but I will advise you to go beyond that. I would advise all the teachers to publish their data in Scopus and Web of Science Index journal only, because all those journals are going to part of UGC list. Not आप बेफिक्र रहिए, right? So that like you are going to be recognized globally. If you really want global recognition, you need to publish your data in good journal. Consultancy, जैसे मैंने बताया, although it is not applicable to affiliated colleges, लेकिन आपको बताऊं कि there are many small colleges जो कि consultancy का पैसा कमा सकते हैं. एग्जाम्पल मैं देता हूँ. हमारे सोशल साइंस के प्राध्यापक है, उनके पास बड़े क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, बड़े क्रिएटिव आइडियाज होते. सिंपल में इवेंट मैनेजमेंट, सिंपल इवेंट मैनेजमेंट. हम बहुत बार ऐसा कि इवेंट मैनेजमेंट के कुछ हमारे पास कुछ टीचर्स होते हैं. देखिए कॉलेज में कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जब भी हमें कैटरिंग कमेटी होती है कि पर्टिकुलर XYZ टीचर हमें दिखाई देता है. इसका रीजन क्या है? वो खाने में अच्छा है, उसकी टेस्ट ऐसी नहीं है, उसका इंटरेस्ट होता है, राइट? वो थोड़ा सा इनोवेटिवली सोच सकता है, राइट? एंड दैट इज व्हाई कैटरिंग के लिए एक स्पेसिफिक टीचर होते हैं, उन्हीं के पास हम हर साल जाते हैं, गैदरिंग हो या कोई भी इवेंट हो. वैसे ही हमारे पास कुछ ऐसे टीचर होते हैं कि उनके पास कुछ अलग आइडियाज होते हैं, वो फ्री में बांटते रहते. बट यू कैन सी डॉक्टर, जैसे आप देखिए डॉक्टर अपना दवा खाना शुरू करके बैठता है. जब भी हम उसके पास जाते हैं, थोड़ा भी खांसी क्यों नहीं होती, ही इज गोइंग टू चार्ज यू 50 रुपीज और 100 रुपीज और 200 रुपीज. यू हैव टू गिव. सिमिलरली आप टीचर हो, आप भी चार्ज कर सकते हो ना. मान लो आपको किसी को कविता लिखनी है, राइट? आप किसी को गाइड करना चाहते हैं, कविता कैसी लिखी जाए, यू कैन प्रोवाइड देम. आप लिख सकते हो कि भाई मेरे 1 घंटे का 200 रुपये होगा. आप 1 घंटे में आप जितना मेरे से सुनना चाहो सुनो. आई एम गोइंग टू चार्ज यू 200 रुपीज. लाइक दैट लॉट ऑफ कंसल्टेंसी कैन बी डन. ये अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सही मायनों में पैसा कमाना चाहते हर कॉलेज में, फॉरगेट अबाउट, मैं आपको बताऊं मेट्रोपॉलिटन तो छोड़िए, रूरल एरिया के कॉलेजेस भी पैसा कमा सकते हैं कंसल्टेंसी के. उसके लिए प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी होनी चाहिए, अवेयरनेस क्रिएशन होना चाहिए. ये अगर होता है ना, तो मैं बोलता हूँ कोई भी गरीब कॉलेज नहीं रहेगा. यू विल बी एबल टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी. एक्सटेंशन एक्टिविटी का बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास. हमें लगता है कि एनएसएस एक्सटेंशन एक्टिविटीज देखते हमें एनएसएस एनसीसी दिखाई देता है. नो, ट्रूली स्पीकिंग इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि वट एवर रिसर्च वी आर डूइंग, whatever R&D we are doing in the university, how that research can be utilized for the welfare of mankind. आपने स्ट्राइड, यूजीसी की स्ट्राइड की आई थी. हमारे यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस को, वैजापुर का कॉलेज है विनायक राव पाटिल महाविद्यालय, उनको पैसा मिला है. There are very limited colleges. That was like स्ट्राइड में आप कन्वेंशनल रिसर्च प्रोजेक्ट डाल नहीं सकते. वहां पर यही कंसेप्ट था कि अगर आपके पास जो भी रिसर्च आउटकम आपका है, so you 3-4 teachers you come together and see how
your research outcome can be clubbed together for the benefit of one particular cross section of the society. Okay, this was expected there. Similarly, extension activities में this is what it, apart from NSS, मैं NSS से एक्टिविटी नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम NSS, NCC, रेड रिबन वगैरह जो भी क्लब हमारे पास है, हमें ये इंश्योर करना है कि whatever research we are doing, whatever academic activities we are doing, how those academic activities can be correlated to the society. ऐसा हो नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली, ये होना चाहिए. कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन भी यही प्रॉब्लम है कि लोगों को लगता है कि कोलैबोरेशन एमओयू होना चाहिए. यस, एमओयू इज वन ऑफ द इन एस्पेक्ट ऑफ कोलैबोरेशन, लेकिन एमओयू करने के लिए पहले अपना क्रेडेंशियल होना बहुत जरूरी है. कोई भी इंस्टीट्यूट आपके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड एमओयू नहीं करेगा. इसलिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूट, आइडेंटिफाई द टीचर्स, हैव वन टू वन रिलेशंस, हैव कोलैबोरेटिव वर्क, जॉइंट वर्क. इवन आपको जब हम AQR का फॉर्मेट देखेंगे तब मैं बताऊंगा कि कोलैबोरेटिव एक्टिविटी जो है, इवन लाइक साइंस का टीचर है, मान लो एक सैंपल किसी यूनिवर्सिटी में भेजता है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए कोलैबोरेटिव एक्टिविटी, दैट आल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज ए कोलैबोरेटिव एक्टिविटी. बिकॉज क्यों? क्योंकि आप वहां पर किसी प्रोफेसर को कांटेक्ट कर रहे हो, आपका सैंपल आप दे रहे हो, बट हमारे पास वो होता नहीं. हम क्या करते, वो सैंपल किसी क्लर्क के पास देते, टेक्निकल पर्सन वो सैंपल हमें डेटा दे देता, एंड दैट वाज चैप्टर इज ओवर. नो, what we should do, we should identify professor, we should have interaction with him, we should get some interpretation of the data which you have submitted, and if you can have this kind of collaboration to begin with, later on this collaboration can be converted into MOU. Same thing is same thing is true with industry. इंडस्ट्री का देखिए, हम क्या है ना, एकेडमिशियन, हम हमारे लेवल पे इंडस्ट्री को क्रिटिसाइज करते हैं, इंडस्ट्री जो है वो उनके लेवल पे हमें क्रिटिसाइज करते हैं. वो उनके पास घर में बैठे हैं, हम हमारे घर में बैठे हैं. ये जो गैप है, हम ऑन पेपर बता रहे हैं कि वी हैव गॉट इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन वगैरह वगैरह, असलियत में कुछ है ही नहीं. हमें ये देखना पड़ेगा, इफ यू रियली वांट टू हैव इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, you need to like every institute need to employ some of the teachers, some, not every teacher, because every teacher cannot go to the industry, but you need to identify which teacher can have probable potential to have the industry linkages. You identify those teachers, give them some freedom, allow them to go to the industry, allow them to understand the issues of industry, and this is going to be a continuous process. If you start doing this, you can have wonderful industry linkages as well. This is not happening. These are the challenges. That is why I thought like I should tell you. As far as criteria 4 is concerned, percentage of per day uses of library by teacher and student. ये यहाँ पर ज्यादातर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस यहाँ पर डेटा देने में बड़ा मुश्किल होता है, because nowadays everybody believe that everything is available because of this internet and this internet connectivity. Everything is available on tips of your finger, right? But it is not true. Truly speaking, there are very important. There could be very important old references. Those need to be referred by students and teachers as well, not only for research but for doing for teaching as well. If you really want to have effective teaching, okay. तो यहाँ पर ये बड़ा important है, इसलिए हमें यहाँ पर awareness create करना बहुत जरूरी है कि yes, teacher need to visit library very oftenly. We need to encourage librarian को जो है कुछ policies initiate करने पड़ेंगे so that teachers will be encouraged. Then facilities for e-content development, although it is not applicable for affiliated colleges, लेकिन हमारे पास आप देखिए COVID-19 आने के बाद हमें अभी लग रहा है कि आने वाला साल हम फिजिकल क्लासेस होना, we don't know as of today. देखिए सिचुएशन कैसी आई. ये हम कर सकते थे, अभी भी कर सकते, अभी भी हम नींद से जागे नहीं. अब देखिए गवर्नमेंट because this since it is like online webinar, I cannot be that much outspoken. Unfortunately हमारे पास हमारे जो रूलिंग करने वाले लोग हैं ना, they are also not that much serious unfortunately, क्योंकि ई कंटेंट डेवलपमेंट के लिए इतना डिफिकल्ट भी नहीं है. It is very easy nowadays, बट कोई सोच नहीं रहा. अभी सेकंड ईयर देखिए आप आखिरी सेमेस्टर के बच्चों को छोड़कर सबको प्रमोट कर रहे by doing some sort of exercise. But we could have organized online examination as well, but nobody is thinking. Nobody want to take the risk, unfortunately. Neither government nor UGC nor any universities, although we are autonomous, कोई नहीं करना चाहता, right? लेकिन आपको बताऊं, this is the need of the hour. आपको बताऊं कि COVID-19 अभी ये ऐसा कहना अच्छा नहीं होगा, but we have to accept the reality. COVID-19 is going to be with us for many years.
We need to understand, we need to learn how to deal with COVID-19, and therefore online learning, teaching learning process need to be a need of the hour, and therefore e-content development facilities बहुत ज़्यादा बड़ी facility होने की जरूरत नहीं है, with minimum facility also can be done. Procedure for maintaining and utilizing physical, academic and support facility, यहाँ पर भी वही problem, हमारे पास कोई procedure ही नहीं होती. आप अगर देखोगे तो हम मॉक मतलब डॉक्यूमेंट भी फेक डॉक्यूमेंट तैयार करते. आप देखिए, मान लो आपके पास एक लैब है, डू यू हैव एनी मैकेनिज्म, एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म फॉर मेंटेनेंस ऑफ लेबोरेटरी? नो, एब्सोल्युटली नो. होनी चाहिए. आप एचओडी हो, आपके लैब की मेंटेनेंस की एक पॉलिसी होनी चाहिए कि क्या पॉलिसी है. अगर मान लो एक्सवाइजेड लैब में कुछ इश्यूज आता है, तो हाउ दैट इश्यू नीड टू बी इनिशिएटेड, हाउ यू आर गोइंग टू रिजॉल्व दैट इश्यूज. So like that, physical facilities, laboratory, library, sport complex, and that is why हमारे पास होता है कि हम बड़े खुशी पैसा आने के बाद कॉम्प्लेक्स खड़े कर दे, इक्विपमेंट्स आते, बट 2-3 साल के बाद में जब देखते हैं तो वो डंप पड़ा होता है. उसका रीजन ये है कि हमारे पास इस्टेब्लिश एक प्रोसीजर नहीं है. NAAC is expecting that. So instead of creating fake document, please be serious and create this sensible document. Student support and progression कुछ challenges है. Number of capacity enhancement scheme, ये भी यहाँ पर भी ऐसे ही है. There could be n number of capacity enhancement scheme can organize. हम बहुत सारा वैल्यू एडिशन जो कोर्सेस है, some of them could be considered as a capacity enhancement scheme. Some of them skill based courses है, short term courses है, 1 week courses, 2 week courses, 3 week courses, 1 month courses. There are many courses. Competitive examination है. There are n number of options available. But कुछ हम करते हैं, कुछ हम डेटा बनाने के लिए करते हैं. मेरी रिक्वेस्ट, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट ये है कि do it, but don't do it just for the sake of preparation of data. Do it for the welfare of your student. Do it for the benefit of the student. Student progression and placement, आपको पता होगा कि 2 साल पहले यूनिवर्सिटी यूजीसी का एक मैंडेट था कि there should be 50% student outcome. Student outcome comprise of student progression as well as placement. आपका प्लेसमेंट और प्रोग्रेशन दोनों मिला के कम से कम 50% होना चाहिए. ये मैंडेट है यूजीसी का, क्वालिटी मैंडेट. लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में होता नहीं. हमें फॉरगेट अबाउट करने क्या है, हमारे पास डेटा ही अवेलेबल नहीं होता कि हमारे पास like there are very few colleges, very few universities which are exception for this. But most of the universities, most of the colleges, they don't have structured mechanism for recording student progression, for recording student placement. हम कैंपस ऑर्गेनाइज करते, लेकिन हमें पता नहीं रहता कि वो कैंपस में कितने बच्चे एम्प्लॉयड हुए, वो आगे उनको क्या हुआ. मतलब इट्स नॉट ओनली द एम्प्लॉयमेंट. आपको ये देखना पड़ेगा कि मान लो 2020-21 में वो अगर किसी एक्सवाइजेड कंपनी ने उनको अगर एम्प्लॉय किया है, तो आगे अगले 5 साल में क्या हुआ उनका, ये भी आपको ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा. नहीं तो 20-21 का डेटा है आपका, अगर 25-26 में NAAC अगर होगा तो आपके पास डेटा ही नहीं रहेगा. यू नीड टू कीप रिकॉर्ड. सिमिलरली प्रोग्रेशन, आपका एमएससी आपके कॉलेज में हुआ, यूनिवर्सिटी में हुआ, एमएससी के बाद वो क्या कर रहा है हमारे पास कुछ नहीं पता नहीं होता. we don't have structured mechanism to collect this data. We need to develop this kind of structured mechanism. That is why these are challenges. Student participation, sports and cultural activities में यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है कि देयर आर, मतलब पार्टिसिपेशन कैसे होना, मास लेवल पे होना चाहिए. क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि कॉलेज स्कूल में एक टीचर, पहले हम जब स्कूल में थे तब भी एक लेक्चर हुआ करता था पीटी का, राइट. तब एवरी स्टूडेंट, इट वाज मैंडेटरी फॉर एवरी स्टूडेंट टू डू सम एक्सरसाइज इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर. आजकल क्या हुआ, इट बिकम ऑप्शनल. तो यूनिवर्सिटीज में फॉरगेट, कॉलेजेस में तो बच्चे कम से कम एक्टिव पार्टिसिपेट कर दे. यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि कल्चरल एक्टिविटीज में वो डिपार्टमेंट ड्रामा के बच्चे रहेंगे और हार्डली 1 or 2 बच्चे रहेंगे बाकी डिपार्टमेंट के. एंड फिजिकल स्पोर्ट्स में तो यूनिवर्सिटी के बच्चे होते ही नहीं, सब कॉलेज के बच्चे होते हैं. सो व्हाट द हेल वी आर डूइंग, हाउ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द डेटा. So we need to create that kind of culture among the department. Every student need to participate in sports and cultural activity. एक हमारा रेगुलर टाइम टेबल होना चाहिए, उसमें कम से कम एक घंटा होना चाहिए स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज के लिए, तो जो कि नहीं है ज्यादातर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में. कंट्रीब्यूशन ऑफ एलुमनाई का भी यही प्रॉब्लम है हमारे पास. चैलेंजेस इसीलिए क्योंकि एलुमनाई भी हम NAAC के लिए खास एक लिस्ट बनाते, बड़े बड़े लोगों का वो इंटरेक्शन के लिए बुलाते. लेकिन अगर ट्रू सेंस अगर उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए, विद वेरी लिमिटेड एक्सेप्शन, वेरी yes, there are some colleges, there are some universities, there are some people, there are some alumni, but there are very few in number. Most of the colleges, most of the universities,
Most of the alumni, they are not at all connected. क्या होना चाहिए? Forget about financial contribution. Financial के एक तरीका है. आप अगर if you follow that method, structured mechanism, you can generate substantial revenue through alumni also. People are there to, people are ready to provide, but we don't have, proper platform. And moreover, it's not only financial, what kind of intellectual participation you are having of alumni. ये भी बड़ा limited होता है. This is also challenging. Similarly, criteria 6, governance, leadership, management, practice for decentralization and participative management. ये आप देखिए हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ये होता ही नहीं है. Decentralization, participative management होता ही नहीं. Perspective strategic plan पेपर पे एक होता है, चल कुछ और होता है. हर कॉलेजेस का, हर यूनिवर्सिटी का पर्सपेक्टिव प्लान होता है, लेकिन वो पर्सपेक्टिव प्लान और एक्चुअल डेवलपमेंट कोई लेना देना होता नहीं है. तो कैसे आप डिफेंड करोगे नैक को? क्या एक ही बार तैयार करोगे आप? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस इन एरियाज ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पर भी वी आर मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स आर स्ट्रगलिंग. फाइनेंशियल सपोर्ट टू द टीचर्स टू अटेंड कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ज्यादातर इंस्टीट्यूट में देते ही नहीं है. उनको लगता है कि भाई हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को लगता है क्यों दे हम टीचर को, क्योंकि उनको तो अच्छा खासा पगार सैलरी है, हम क्यों पैसा दे. अगर पैसा नहीं दोगे तो सपोर्ट यहाँ पर कैसा डेटा कैसा बनाओगे? प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, इज नॉट ओनली अटेंडिंग. आपने कितना ऑर्गेनाइज किया? आप खुद ने, अपार्ट फ्रॉम आरडीसी, आपने एचआरडीसी. अब देखिए, फॉरगेट अबाउट एचआरडीसी. एचआरडीसी इज वन. एचआरडीसी को तो यूजीसी पैसा देता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट हाउ मेनी एफडीपी प्रोग्राम यू हैव ऑर्गेनाइज्ड फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग? Funds and grants received from non-government bodies and individual and philanthropists. How, like, what kind of efforts you have created to collect CSR funding, philanthropist से पैसा कितना collect किया आपने? And strategies for mobilization of fund, that is very very important. And optimal usage of fund and resources. This is where the challenging areas. And the criteria 7. यहाँ पर identification of 2 institutional best practices and distinctive feature. अभी प्रॉब्लम ये है कि वो जब AQR का फॉर्मेट होगा वहां पर मैं ज्यादा इसको ट्रेस करके बताऊंगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को समझता ही नहीं कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है. आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप बेस्ट प्रैक्टिस आइडेंटिफाई करने का तरीका मैं बोलता हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा कि पिछले 5 साल से यू स्टार्ट लुकिंग एट योर ओन एक्टिविटीज. आप देखिए कि भाई व्हाट इज द एक्टिविटी, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स, how many are participant, how much funding you have utilized, what are the probable outcome, not probable, what kind of achievement you had पिछले 5 साल में. ये सब डेटा जो है ना, आप 1 2 3 4 ऐसे 10-12 एक्टिविटीज का कलेक्ट करिए and see which data, which activity take you to a better, good amount of data in terms of objectivity, in terms of outcome, in terms of पार्टिसिपेशन भी इंपॉर्टेंट है. कोई एक्टिविटी है वहां पर 1-2 टीचर काम कर रहा है, 1-2 स्टूडेंट काम कर रहा है, नो, बिकॉज सिंस वी आर टॉकिंग दिस इज बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ इंस्टीट्यूशन, पार्टिसिपेशन शुड बी more participation, right? Then similarly outcome should be substantial outcome, okay? And moreover आपके बेस्ट प्रैक्टिस किसी इंस्टीट्यूट का भी बेस्ट प्रैक्टिस हो सकता है. इस एक सिटी में 2 कॉलेजेस है या 2 यूनिवर्सिटीज है, आपका जो बेस्ट प्रैक्टिस है दैट कुड बी अ बेस्ट प्रैक्टिस फॉर अदर कॉलेज और यूनिवर्सिटी एज वेल, नो इश्यू एट ऑल. लेकिन डिस्टिंक्ट फीचर जो है, डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये लेकिन आपका बिल्कुल डिस्टिंक्ट होना चाहिए. क्योंकि डिस्टिंक्टिव फीचर इसीलिए माना जाता है ना कि आप जो है हटकर हो सबसे, मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि बाकी कोई कर नहीं रहा. क्राइटेरिया सेम रहेंगे जो बेस्ट प्रैक्टिस के हैं, उसी टाइप को आपको देखना पड़ेगा कि भाई कितने साल से आप कर रहे हो, कितना पैसा आपने लगाया, पार्टिसिपेशन कितना है, आउटपुट कितना आया है, राइट, बेनिफिशियरीज कितने हैं, राइट, एंड देन दैट शुड बी यूनिक. दूसरा कोई, मतलब जो आप बता रहे हो दूसरे कॉलेज में नहीं होना चाहिए, ऐसा एक्टिविटीज. इसमें काफी अच्छे मार्क्स है. आप अगर सही तरीके से आप करोगे तो यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स. नाउ आई विल बी मूविंग अहेड. दिस वाज चैलेंजेस. Now, as far as the quantitative and qualitative weightages is concerned, this is very important. कि ये क्यों important है? जब आप असेसमेंट के लिए जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्वालिटेटिव के लिए कितने मार्क्स है, क्वांटिटेटिव के लिए कितने मार्क्स है. आप देखिए, आप अगर कॉलेज, यूजी कॉलेज आप बिलोंग करते हो तो ऑलमोस्ट 66.5% क्वांटिटेटिव को जाता है, 33.5% क्वालिटेटिव को जाता है. पीजी के लिए कितना है? 67% है क्वांटिटेटिव के लिए,
क्वालिटेटिव के लिए इतना जाता है। अब इट्स नॉट ओनली दिस, आप क्राइटेरिया वाइज देखना पड़ेगा आपको, क्राइटेरिया वाइज आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जैसे क्राइटेरिया 7, क्राइटेरिया 7 में ज्यादा मार्क्स आपको क्वालिटेटिव में है, तो इसका मतलब क्या है, क्राइटेरिया 7 में अगर आपको ज्यादा मार्क चाहिए तो पीयर टीम जब आएगी तब आपको वो डेटा सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करना पड़ेगा। क्राइटेरिया 6 एंड 7, यू कैन सी क्राइटेरिया 6 एंड 7 क्वालिटेटिव में बहुत ज्यादा मार्क्स है एज कंपेयर टू क्वांटिटेटिव। ओके, यू सी, so this kind of assessment even called criteria 2 also, although quantitative में 225 है लेकिन क्वालिटेटिव में 125 है, काफी सब्सटेंशियल है। तो जब पीयर टीम आपके पास आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्राइटेरिया आपको ज्यादा मार्क्स देगा। इट्स नॉट ओनली पीयर टीम, आप जब डेटा भरोगे एक्यूआर का डेटा, एक्यूआर भी असेस होगा, अभी एक्यूआर के भी क्वेरीज आएंगे, जैसे कि नैक एसएसआर की क्वेरीज आते वैसे एसएसआर की भी क्वेरीज आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि किस क्राइटेरिया में आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए क्वालिटेटिव ड्राफ्ट लिखते समय ये क्वालिटेटिव मार्क्स कितने वो देखना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाई आई प्रिपेयर दिस स्लाइड। This is for autonomous colleges and university. You can see as far as the university is concerned, university को quantitative में काफी ज्यादा है 73% and qualitative में only 26%. But as far as the colleges are concerned, roughly 32 to 35% is for qualitative and around 65 to 67% is for quantitative. अब रिजल्ट का ट्रेंड मैं आपको बताऊं, ये फर्स्ट विंडो का रिजल्ट का ये है ट्रेंड है। आप अगर देखोगे इसमें ये डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आप अपने एक ही बार जब भरेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि लोग कहां पर हैं, अभी रिजल्ट के ट्रेंड्स कहां कैसे हैं। ओके, सो दैट हमें तैयार, मतलब वो तैयारी से आप रहेंगे। देखिए यहाँ पर आप अगर देखोगे ये डेटा, तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इन दिस वाज रिजल्ट ऑफ फर्स्ट विंडो, अभी तक का मेरे पास रिजल्ट का डेटा है, आई विल बी मूविंग स्लोली। ओके, आप देखिए फर्स्ट विंडो शुरुआत में ज्यादातर कॉलेज आउट ऑफ, you can see out of 48, 17 college were in the B grade, revised accreditation framework आने के बाद। कुछ important point है, 14 HEIs were down in grade and 13 HEI were up in grade, मतलब 14 जो है out of 48, 14 जो है almost नीचे गए थे और 13 could improve their grade। ये यूनिवर्सिटी 43 यूनिवर्सिटी का सैंपल साइड है। 43 यूनिवर्सिटीज में देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ग्रेड क्वालिफायर, इसमें से 24 यूनिवर्सिटीज ऐसे थे कि जो क्वालिफाई नहीं की थी उन्होंने, जिसका सीजीपीए इन वन और अदर क्राइटेरिया वाज लेस देन 1.5। ओके, आगे बढ़कर जब क्वांटिटेटिव डेटा एनालाइज किया तो पता चला कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज वे स्ट्रगलिंग इन क्राइटेरिया 3 एंड क्राइटेरिया 6। ज्यादातर यूनिवर्सिटी दे वर स्ट्रगलिंग इन क्राइटेरिया 3 and 6 as far as quantitative assessment is concerned. This is 66 affiliated colleges का sample size है। यहाँ पर लगभग 33 colleges they were not able to qualify, grade qualification में मार्क आ गए, एक 1.51 से कम ग्रेड था उनका। एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में देखिए अगेन कॉलेजेस आल्सो क्राइटेरिया 3 और 6 में ज्यादातर स्ट्रगल कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, whether you are from college or university, most of the institutions were struggling in criteria 3 and 6 as far as first window outcome was concerned. Now this was the result up to April 1 2019। April 1 2019 ये यूनिवर्सिटी का है। आप देखिए कि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज B+ और B में, सबसे ज्यादा B+ यूनिवर्सिटीज में थे नए ग्रेड से, एंड सेकंड नंबर था B, एंड सेम थिंग इज ट्रू विद कॉलेजेस एज वेल। April 1 2019 का डेटा है, तब तक का जो था B+ में 19, B में सबसे ज्यादा थे, यूनिवर्सिटीज में B+ में ज्यादा थे, कॉलेजेस में B में ज्यादा थे, and next was B+। So now you see the today data. This was like you can see May 1 2019 to March 11 2020 recent data, पिछले एक साल का डेटा है। पिछले एक साल का ट्रेंड आप अगर देखोगे यूनिवर्सिटीज का, तो सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज B ग्रेड में है एंड देन सेकंड A+ में है। मतलब जो पहले क्या था B और B+, अभी B और A+। इसका मतलब ये है कि पिछले एक साल में यूनिवर्सिटी का सिचुएशन थोड़ा बेटर हुआ है। मेनी यूनिवर्सिटीज आर A+। As far as colleges is concerned, colleges are struggling. You can see पिछले एक साल में सबसे ज्यादा कॉलेजेस B में थे एंड उसके बाद नंबर आता C का। There are substantial number out of 579,
151 colleges during last 1 year, they are in C grade and 191 are in B grade. You can see, इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये criteria, although there has been lot of changes in criteria, लेकिन the assessment जो है, assessment day by day becoming very very particular. They are very serious. They are very ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एंड देयरफॉर आप अगर अच्छा कर रहे हो, ए प्लस भी है, देखिए ए प्लस में नंबर कम है, यूनिवर्सिटीज में ओनली 5.2 एंड कॉलेजेस में ओनली 0.86 पिछले एक साल में, ओनली 0.86 आउट ऑफ 579, ओनली 5 कॉलेजेस आर ए प्लस प्लस कॉलेजेस. सो आपको काम करना पड़ेगा. डेटा अगर अच्छा आप करोगे, जो चैलेंजेस मैंने बताया उसको अगर जेन्युइनली आप अगर सोचेंगे तो आप डेटा तैयार करोगे. अदरवाइज AQR का डेटा में फॉर्मेट क्यों नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड लिया, क्योंकि फॉर्मेट तो यार आप खुद समझ सकते हो, लेकिन उसको तैयार कैसे करना है, उसके पीछे आपको क्या एफर्ट्स लेने चाहिए, ये अगर आप नहीं करोगे तो आप इंपैक्टफुल डेटा तैयार नहीं कर पाओगे. These are some of the institute, they missed grade by very small margin. आप देखिए 3.0, 3.0, 3.3.01 रहा तो A grade आता है, 3.00 B double plus. They end up with, because of 0.01 they lost their A grade. You see 3.0, 2.96, these are the name of the colleges and universities, and these are the luckiest universities and institute. By smallest margin they could succeed. 3.01, इनको अगर 3.00 मिलता था, B grade मिलता, B double plus होता था आजकल अभी, right? So you can see, so इसका मतलब ये है कि we have to be very careful. ये बताने का रीजन ये है कि आप अगर सीरियस नहीं रहोगे, आप अगर कैजुअल अप्रोच अगर रखोगे, so you are going to be in trouble. So please I don't want you to be in trouble. Okay, I think now today I am going to stop here because